नमस्कार। आप सभी का इस सुहानी शाम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की जो थीम है, ITU ने जो थीम दी है इस वर्ष 2025 के लिए, दैट इज़ जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं दिनेश अग्रवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, IET, ASI, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी और हमारी सभी सपोर्टिंग संस्थाएं, वाटर मैनेजमेंट फोरम, ICI, ACM, MSME एंड स्टार्टअप्स, हमारे सपोर्ट पार्टनर्स, पैनलिस्ट, मॉडरेटर, सीनियर मेंबर्स ऑफ IET, सीनियर मेंबर्स ऑफ II, सीनियर मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज, पास्ट प्रेसिडेंट IET, पास्ट काउंसिल मेंबर्स, सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। वेलकम अगेन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन डे का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसका क्या आज के दिन में हमारे लिए क्या महत्व है। इसके बारे में पूरे सेशन में चर्चा होती रहेगी। 160 साल पहले ITU ने इस बारे में सोचा था, इसकी स्थापना हुई थी और डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन सारे इसके द्वारा गवर्न होते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि ITU के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो हर वर्ष एक संदेश देते हैं। उससे हमें एक और जानकारी मिलेगी कि इस वर्ष की जो उनकी थीम है और उसके बारे में विश्व क्या सोचता है और हमें किस राह पे चलने की वो लोग प्रेरणा दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक मैसेज आता है ITU, आपको पता है, किसी को पता है ITU का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन। ये यूनियन क्या काम करता है सर, आप बताओगे? राइट। सो जो भी टेलीकम्युनिकेशंस में रिवॉल्यूशंस आता है उसकी एक अथॉरिटी जैसे बनानी होती है। दैट अथॉरिटी हैज़ बीन गवर्न्ड बाय द ITU एंड ITU हैज़ स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंसेस आते हैं उसका सेलिब्रेशन करना है, उसका एक पूरे साल में एक थीम रखना है। दैट शुड बी अलाइन विद द SDG। उसके लिए ये पूरा डे सेलिब्रेट होता है। तो एवरी 17th में वी हैड वन न्यू थीम। The whole year we celebrate that theme and we work on that theme. So उसके लिए तो this year we had a theme of gender equality in digital transformation. So this year we are celebrating gender equality in digital transformation. Yeah. Happy World Telecommunication and Information Society Day. This year's celebration is a special one because it marks 160 years since the founding of the International Telecommunication Union. Since 1865, ITU has been connecting the world across borders. With each new wave of technology, from the telegraph to radio, telephones to satellites, and from mobile internet to AI. ITU has been working every day to expand digital opportunities for all. But while we've come a long way, in 16 decades, we know 1/3 of humanity is still offline. Looking closely at that unconnected population, we find a significant access gap that risks leaving millions of women and girls behind. We also know that millions more lack the skills and resources to use technology in a meaningful way. That's why this year's theme, Gender Equality in Digital Transformation, is so important. We witness that significance every year on Girls in ICT Day, which has reached hundreds of thousands of young women across more than 175 countries by opening pathways to STEM education and leadership opportunities. We're building on that momentum through our renewed Equals Global Partnership that aims to equip 100 million women and girls with digital skills by 2035.
ITU supports these global efforts because we believe everyone deserves to have the confidence, skills, and opportunities to thrive in an increasingly digital world. Because when technology's benefits reaches everyone, all of humanity wins. So today, I call on all ITU members and partners to mark our 160th anniversary by taking action and recommitting to a digital future where everyone, everywhere, can participate, benefit, and lead. Thank you. थैंक यू। ये थी मैडम डोरिन बोगडन मार्टिन, जो सेक्रेटरी जनरल ITU से हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट चेयरपर्सन IET टू रीड आउट द मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट IET न्यू दिल्ली। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। IET प्रेसिडेंट श्री सुनील का मैसेज हमारे साथ है और मैं आप लोगों के लिए उसे रीड आउट करती हूँ। डियर ऑनरेरी चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ऑफ IET सेंटर्स, सब सेंटर्स, प्रोफेशनल एक्टिविटी सेंटर्स, organizational members and coordinators of IET Student Forum. I would like to extend a warm invitation to everyone to join us in commemorating 57th World Telecommunication and Information Society Day, WTISD 2025. As you are aware, the International Telecommunication Union ITU observes World Telecommunication and Information Society Day on May 17, which commemorates the organization's founding in 1865. In accordance with Resolution 1416 of the ITU Council 2023, WTISD is emphasizing gender equality in digital transformation this year. This year's theme resonates deeply with our mission to promote technological advancements and inclusivity in the field of electronics and telecommunication. This theme chosen by ITU emphasizes the critical importance of empowering women and girls to fully participate in the digital future by addressing gender gap in digital access, affordability, skills, and leadership. Community as a whole reaps the benefits when digital technologies enable each person's autonomy. Women and girls are able to take part in every facet of life to a greater extent when they have access to digital tools such as the internet and mobile phones. They may create a business, see work, obtain necessary health, financial, and government services, pursue education, talk with anybody they choose, and more. This empowerment enhances their own life as well as the general growth and success of their families and communities. Let us come together on May 17, 2025 and recognize the significance of reducing the digital divide and encouraging girls and women in STEM. IET is committed to the technological advancement, knowledge exchange, and building expertise as a pioneering professional organization in the electronics and telecommunication sectors. I truly encourage you to take part in the discussions about how to support equal rights for women in the digital age. Any of our centers that cannot celebrate on May 17 can still try to honor the day whenever it works for them. Let us work together to create a more inclusive and equitable digital society. May the 2025 WTISD celebration be a resounding success for all of you. With best regards.
Thank you so much. I would like to thank our President, Shri Sunil, for this encouraging words for the women. Thank you so much. धन्यवाद. अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर नीरज भाई शाह को, सेक्रेटरी IEI. He will brief about the event as well. He will explain the message from President Institute of Engineers India. Shri Neeraj bhai, please. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. આજે છે ને ગુજરાતી કેટલા કમ્ફર્ટેબલ છો? મને એવું લાગે કે થોડો ફેસ કોઈ ન કમ્ફર્ટેબલ હોય કેટલા છો ગુજરાતીમાં? गुजराती समझ में आएगी? 100% प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा लाइट माहौल कर सकते हैं इसके लिए. ये क्या है कि ये प्रोग्राम करना अभी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम होती है. उसमें अगर लाइव करना है तो कुछ ना कुछ चेंज चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक साथ MOU किया हुआ है कि हर साल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे साथ में सेलिब्रेट करेंगे. तो पहली संस्था है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, तो उसका गुजरात स्टेट सेंटर. फिर IET जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की इंस्टीट्यूट है, और तीसरी है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया. ये तीनों इंस्टीट्यूट हर साल पिछले करीबन 10 से 12 साल से साथ में सेलिब्रेट कर रहा है ये डे. तो हर एक के प्रेसिडेंट के मैसेज सुनना ऑलमोस्ट थीम सेम होता है, हर एक के चेयरमैन का मैसेज सुनना वो भी गलत होगा. तो पर्पज़ क्या है वो हम लोग सुन लेते हैं. तो IEI के प्रेसिडेंट VB सिंह सर है, उनका मानना है कि मैसेज से ज़्यादा आप कुछ काम करके दिखाओ. तो मैं उनके मैसेज का कर्क आपको यही बता रहा हूँ. ऑल्सो ओपनिंग नोट्स सुभाष जी देने वाले थे जो हमारे यहाँ गुजरात स्टेट सेंटर के चेयरमैन है IEI के, एंड CSI का मैं चेयरमैन हूँ तो मैंने छोड़ दिया था कि सब एक का एक बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. तो लेकिन सुभाष जी की एब्सेंस में ही इज़ ट्रैवलिंग समवेयर एंड नॉट एबल टू ज्वाइन अस. तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम आई वुड लाइक टू प्रिविलेज दैट आई विल प्रेजेंट बोथ द इंस्टीट्यूट. तो IEI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स की सारी ब्रांचेस 32 ब्रांच को कवर करता है 15 सेक्टर्स में, एंड उसके सारे मेंबर्स है. वही मेंबर्स ये अलग अलग, जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक्स का डे है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न के हमारे रिप्रेजेंटेटिव दिनेश अग्रवाल जी है पूरे गुजरात से. तो ही इज़ द टेकिंग चार्ज ऑफ दिस इवेंट, एंकरिंग कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं. तो ऐसे हर एक डिवीज़न के, सिविल डिवीज़न के हमारे यहाँ पे चैतन्य भाई है. तो एवरी डिवीज़न हैज़ ए वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गुजरात एंड दैट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग पार्ट. ठीक है, तो उसमें जो भी इनोवेशन आता है, जो भी करता है वही है. तो आज हमें बात करनी है सारे इनोवेशंस रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, तो आज हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी चीज़ें करने वाले हैं वो वही करने वाले हैं. तो आपको क्या लगता है जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है? अहमदाबाद में है पहले तो, है या नहीं है? यस और नो? कौन यस बोल रहा है? लेडीज बोले तो काम का है. ठीक है, इवन तो वी फील दैट के जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन अहमदाबाद अभी भी 42% पे है, सो नॉट 50% पे. वी आर द हाईएस्ट इन गुजरात, मॉडर्नाइजेशन में है, फिर भी 42% अभी तक मानी जाती है. एंड घर से बाहर आके जो लेडीज़ वर्क कर पा रही है वो 37% ही है. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल मानते हैं कि ह्यूमन में 100% में से 37% वुमन ही वर्क कर रही है जो बाहर जाके. लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी की देन है कि आज सारी वुमेंस या तो नेट पे जुड़ी हुई है, भले ही वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, या तो यूट्यूब पे कुछ लर्न कर रही हो, या कुछ टीवीज देख रही हो हॉटस्टार पे या जियो वर्ल्ड पे, कुछ भी देख रही है, लेकिन दे आर ऑन. तो कुछ ना कुछ तरीके से एजुकेशन या एंटरटेन कर रही है अपने आप को. तो दैट इज़ वी बिलीव दैट कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना तो हुआ है. बहुत सारे लोग अभी डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल एजुकेशन भी दे रहे हैं. कुछ लेडीज़ ने तो कोरोना में इतना धमाल मचा दिया कि व्हाट्सएप पे क्या क्या बेच डाला पता नहीं चला. सो ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन, बट दैट इज गिविंग देम इक्वालिटी. इवन तो दे आर विद इन अ वॉल, दे आर टचिंग द वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन, थ्रू सिस्टम्स, through their activity, innovations everywhere.
सो यही मैसेज को कंक्लूड कर रहे थे हमारे चेयरमैन सर, हमारे प्रेसिडेंट सर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ CSI मैं भी वही करना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पूरे दिन, यहाँ पूरे 1-1.5 घंटा जो हम डिबेट करने वाले हैं, यहाँ पे ये डिबेट में 2 लेडीज़ है, 2 बंदे हैं। बंदे वैसे तो एक ही है, दूसरा तो मैं मॉडरेटर हूँ, लेकिन हम लोग फाइट करने वाले हैं कि क्या सही है से क्या गलत है। मैंने रिमार्क्स डाला था गूगल फॉर्म में, तो किसी ने लिखा कि यार मेल की साइड से कुछ तो बोलना, हर बार यही होता है कि ऐसे टॉपिक पे आप मेल के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हो। तो मैं आज ढूंढ रहा था, मेरे बच्चे को बोल रहा था कि यार ऐसा तो कहाँ पे। वो बोला लक्षद्वीप में डैडी जो होता है ना बॉय, वो शादी करके लेडीज़ के घर जाता है, तो आप वो ये बता देना। सो दिस इज़ द आज के ज़माने में भी अभी भी लक्षद्वीप में, मिनिकोय में या करवती में, ये जो सारे आइलैंड्स है वहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि लड़की का वहाँ लड़का जाता है, नहीं कि लड़की के वहाँ लड़की जाती है। तो दिस इज़ हाउ द, तो कहीं पे ऐसा भी डोमिनेंस अभी भी आज भी इंडिया में चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे लिए भी कुछ देखना, ठीक है, श्योरली। सो कीपिंग स्वीट एंड स्मॉल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ओवर हियर इन योर बिजी शेड्यूल. Let us have a good discussion and information on the gender equality in digital transformation. Thank you very much. Thank you, Neeraj bhai. Now it's time to invite our support partners here. And in that series, I will request Shri Nilesh bhai Waghela ji to come on the dais. Let me give brief introduction of Shri Nilesh bhai. He is basically the CEO of Electromech Cloud KIDA and AWS community के वो hero है, and he is the co-founder for Cloud KIDA Private Limited. AWS community के वो instructor and all so many things. He is basically a mechanical engineer graduate from MS University, and he was one of the panelists last year. And we welcome you, sir, again. And we are very much thankful to you for supporting this event. And I will like to give the moment on behalf of all of us to you. हर एक इवेंट के पीछे सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियली, मोटिवेशन, सब कुछ। तो ये सपोर्ट इस बार नीलेश भाई की तरफ से है, तो इसके लिए हम लोग उनका फेलिटेशन कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। नीलेश भाई, वुड यू लाइक टू से समथिंग? और वुड यू लाइक? थैंक यू वेरी मच। या आई रिक्वेस्ट 1 minute प्लीज। AWS, अमेजोन का नाम सुना हुआ है ना? AWS उनकी पूरी कम्युनिटी के ये हीरो गिने जाते हैं, एंड ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन फॉर अमेजोन वेब सर्विसेज। तो आपको कभी भी जरूरत हो, पर्दे के पीछे के बड़े खिलाड़ी है। થેન્ક યુ વેરી મચ। સો આજે મારે બહુ બોલવાનું નથી એટલે વધારે ટાઈમ નહીં લઉં, પણ આ ટાઈપનું જે એક ઇવેન્ટ્સ થાય છે એમાં થોડુંક ઘણું હું મારા તરફથી સપોર્ટ કરી રહ્યો છું. સો મને આઈ એમ વેરી હેપી ઓન દેટ પાર્ટ. થેન્ક યુ કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી આ ઇવેન્ટમાં સપોર્ટ કરવાનો, અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારે હશે તો જે પણ નાનું મોટું કંઈ કન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું હશે આઈ એમ રેડી ફોર દેટ. નોટ ઓનલી સ્પોન્સરશિપ બટ ઘણી બધી રીતે નીરજભાઈ અને સર જોડે પણ અમે ઘણી બધી ઇવેન્ટ કરી રહ્યા છીએ. તો આઈ એમ વેરી હેપી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Waghela Sahab. Now I would like to invite Shri Kanishk Bhai Patel. Kanishk Patel. From We Here. विजय भाई आज कुछ इमरजेंसी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी बिहाफ में कनिष्क भाई प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कनिष्क भाई को प्लीज। Welcome to Kanishk Bhai. Let me read out. He is one of the panelists. More introduction will be given by the moderator, Dr. Neeraj Bhai. But still, I will give you the brief introduction now. He is the youngest chap here. In fact, 2017 pass out, and he is having 7 patents in his name. And is basically his work domain is We Hear. So sound and hearing technologies pe they are the expert basically. And to name few awards, the major awards, that is Atal Innovation Award 2020
He is one of the awardees in Atal Innovation Award. Then Social Impact Startup Award. Then Gujarat SEC Award in 2019. So welcome, Kanish Patel ji. And I would like to call upon Shri Neeraj Bhai to, because they are also one of our support partners. And he is also the panelist. One of the panelists was Shri Vijay Bhai Shah. He is also a very social worker, and but he couldn't join today because of some urgent work. So if you want to speak 1 minute, or you, okay. So now we move on, and we would like to invite Shri Ashok Bhai Desai from Equitas Bank, or his representative from Equitas Bank. He is also one of our support partners. Please come. Yeah, please. Shri Nikunj Bhai More, please come. You both can come, no problem. You both join on the dais. Now I will request Chairperson IT Srimati Preeti to felicitate them. Now they will take 5 minutes to say something. Please. Hello everyone, good evening. I am branch manager in Equitas Small Finance Bank, Prahlad Nagar branch. I am just here to speak about this technological advancement, wherein I would like to say like technology is everywhere, not being in a banker, but for getting customers onboarding from starting from the opening an account and then closing an account and giving finances. So how this journey goes on, I'm just giving you a brief idea. So usually what we have in a mind, like opening an account is just like fill up a form and giving your KYC details. It's not just like that. Now totally there's a big transformation in digital criteria. We could say that. How it is happening is your data is it with the government. As you know, Aadhaar, election, passport, everywhere. And how they put it in a cloud, wherein other organization can use that data, and they go in respective areas. You may say in any areas where they collect the data and go forward. And what is easy for us, for our being a resident, whenever you're going to open a bank account, our data is with the government where they verify. You come with your KYC document and they open it. So I am here explaining that digital transformation is everywhere. It's not like nobody know you. Once you give your ID card and present it to the for any banker or anyone, they can check and verify your KYC details, and then they go forward with the account opening. And yes, obviously, in our bank, Small Finance Bank, we have a good savings rate where we can give up to 7.5, and in FD we are giving 8.55 for senior citizens customer. So yeah, so the journey starts from there, where all the accounts are maintained with the bank, with their system, and it is, it is backed with the good cyber team which look after that. The internet connectivity and the, you can say the how they use your data. Use in the sense how they manage your data, because all your information is with the bank. You're giving your trust to the bank. Like I'm giving all my information, where I'm living, my mobile, my email. So usually bank, what does it? It's not possible for everyone to come to the bank or go anywhere and do signature and go ahead. Rather than what you do now, you can see OTP, one-time password, what you can say. It's very, very crucial. First of all, let me tell you, friends and colleagues, that it's very crucial. Never share this, because OTP means that you are giving an authentication to the bank or any organization or financial company that I am okay, you may go ahead with the transaction, with the confirmation, with the modification, with everything, whatever you say. It's totally ready. So better
Don't share your OTP. Now it goes OTP on your mobile or your email. Now it's further. Now you can say WhatsApp. WhatsApp, may have seen WhatsApp already comes in the account. You have WhatsApp banking if you have checked it. WhatsApp can do anything. Now another innovation is AI. In many mobile banking, if you're using mobile banking, there is AI also, which can also read and interpret and explain you further how to use your data. Further, it goes for mutual fund, SIPs. So usually a technology is everywhere. That's what I'm trying to say. Thank you. Fine, sir. Thank you. Thank you. Now it's time to introduce our panelist to our audience. So I will call and request Shri Kanishk Patel to join the dais. Our second panelist, I will request Madam Dimple Waghela to join the dais. Brief introduction I will give. More light will be thrown by Dr. Neeraj during the discussion. She is again postgraduate from MS University Baroda, expert in financial management, co-founder in CloudKida, and she is proprietor also in Wave Solution. She is having expertise in project and financial management, and she is also one of the respected panelists today. Welcome, madam. आपका स्वागत है. Now I request Shri Vijay Bhai Solanki to please felicitate her with a memento. Now I request Chairperson IIT Srimati Preeti Agrawal to join the dais, one of the eminent panelists today. I will read out the biodata. She is having the experience of 28-29 years in the field of communication. She content writer, mentor, and educator. She has written certain books, Meethe Rishte, Jeevan Ka Indradhanushi Rang, and so on, Kahani Madhur Rishton Ki, and so on. She is basically graduated from BITS Bhilai and post-graduation from Gujarat University, Ahmedabad, Mass Communication Masters. Now she is Chairperson IIT and she has contributed a lot in the script writing, content writing for ISRO, Prajapita Brahma Kumari, Sabarmati Ashram, as well as she has written so many advertisements and so many scripts for various organizations belonging to technical and societal. She is also currently active in the societal work and she is also the Mahamantri at Gujarat Pradesh Agrawal Mahasabha for the women empowerment. Welcome, madam. Now I request our past president and past chairman IIT, Srimati Dagor madam, and will request Preeti to go there and take the memento from her. Now I will request Dr. Neeraj ji, Honorary Secretary II, Chairman, Computer Society of India, moderator here today for this function. And it's very difficult task for me
to read out his biodata. He is having, I will tell only 3 lines, he is having 157 patents in his name. He is MTech, MBA, doctorate in robotics, and he is having association with so many professional organizations, and he is very active person, and he has contributed a lot to society for the robotics, IoT, and so on. So a lot of discussion will take place today in the panel discussion. Welcome, sir, again. And I request now today to invite Kushwaha sir, our II member, to felicitate him. Sri Kushwaha sir, please. Thank you. Now the floor is yours, Dr. Yeah. Neeraj ji. Before I take charge, I would like to invite Vijay Bhai Parekh to felicitate Dinesh Bhai Agrawal with a memento, because he is the right person for this day. So I would like to say we felicitate him also. Yeah. दिनेश भाई अग्रवाल इसरो के साइंटिस्ट है, हमारे ईटी डिवीज़न प्रेजेंट कर रहे हैं एंड आईटी के भी मेंबर है. सो वी विल अप्रिशिएट हिम. थैंक यू वेरी मच दिनेश भाई फॉर एंकरिंग अस. थैंक यू. सो आर वी रेडी फॉर पैनल डिस्कशन? हॉट चाहिए या ठंडा ठंडा? हॉट चाहिए तो हॉट आवाज़ चाहिए, नहीं तो ठंडा ठंडा रहेगा तो ठंडा ठंडा ही आवाज़ आएगा. रेडी? अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है. रेडी? हाँ, फिर ये लोग बोलने स्टार्ट करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो आप बोलो यार कुछ तो. मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से डिफरेंस करते हैं. क्योंकि कनिष्क भाई का आज मैं कुछ भी इंट्रोडक्शन बोलूँगा, आपको पसंद आए ना आए, सुनो ना सुनो, याद रहे ना रहे, लेकिन ये पता है कि एक शार्क टैंक में जाके आया बंदा है, तो वो सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो सकता है. वुड यू बिलीव और यस और नो? सो यही है. तो कनिष्क वैसे मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो मैं कनिष्क भाई की जगह कनिष्क ही कहूँगा अभी. सो कनिष्क, आई एम नॉट टेकिंग टू मच इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, बट अगर आपको अपने आप को एक लाइन में प्रेजेंट करना हो तो कौन सी लाइन में प्रेजेंट करोगे? Hello. Yeah. Yes. First of all, thank you so much. Thank you for having me. So, एकदम short introduction दे देता हूँ. So, my name is Kanishk, and we here Innovations Private Limited is our startup, and we started back in 2017. और पिछले 8 साल से हम लोग hearing और audio में काम कर रहे हैं. And पिछले 8 साल में हमने जो hearing technologies है, जो अभी तक इंडिया पूरा डिपेंडेंट था इम्पोर्ट पे, हम लोग चाइना से या यूरोपियन मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते थे, तो हमने उसका पूरा इंडिजाइजेशन करके हम लोग पूरा इंडिया के लिए और इंडिया में से एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिससे जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी हियरिंग, कान के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, उनको हम लोग मैक्सिमम हेल्प कर पाए विथ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया सॉल्यूशंस. तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. થેન્ક યુ. સમજમાં આવ્યું? કાનમાં કોઈ પણ મશીન પહેરા વિના કાન સુધી અવાજ પહોંચાડવાની ટેકનોલોજી બનાવી છે ને એની પેટર્ન લીધી છે ને એના પેટર્ન ઉપર આખો બિઝનેસ બનાવ્યો છે, બરાબર છે ને. લેન્સકાર્ટને ઓળખો છો? લેન્સકાર્ટવાળા ભાઈની સાથે રમે છે, બરાબર, એવું કહી શકું હું ગુજરાતીમાં કહું તો. બરાબર, ખોટું નથી બોલ્યો ને? હા પ્લીઝ. ના ના, અત્યારે એ તો ખબર નહીં ક્યાં, હજી લાઈનમાં બહુ જલ્દી તમને આવતા 6 મહિનામાં જોવા મળશે. હા, એટલે અત્યારથી તમે ઓપન ના કરી દો સિક્રેટ, એમ કહે છે. चलिए, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द डिम्पल मैडम. डिम्पल मैडम CFO છે, ફાઇનાન્સ સંભાળે છે, એટલે પૂછો જે પૂછવું હોય ને યાદ રાખજો, ફાઇનાન્સથી પૂછો. ટેકનોલોજીમાં ફાઇનાન્સ કેવી રીતના મોમેન્ટમ કરાવવું, દેટ ઇઝ હિઝ કોર કોમ્પિટન્સી. મેડમ, વિધિન એ 1 or 2 લાઇન મસ્ત તમારો ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ છે. Hello everyone, I am Dimple Waghela, Director and CFO at Electromech Cloud Tech Private Limited. I am handling all the financial aspect of the company, everything from financial planning, budgeting, and strategy. Apart from this, I am a AWS community builder,
and also AWS user group leader at Ahmedabad and Vadodara. And also I represent AWS Women in Tech India user group last 2 years. Thank you. प्रीति जी का इंट्रोडक्शन सुनना है? ऑलरेडी दिनेश भाई ने बहुत ज़्यादा दे दिया है. सुनना है नहीं सुनना है? लेकिन उनके मुंह से एक लाइन सुन लेते हैं. प्रीति भाभी, मैं प्रीति भाभी जी कहता हूँ क्योंकि दिनेश भाई के साथ हर रोज पंगा रहता है मेरा कुछ ना कुछ तरीके से. तो भाभी जी आप अपना इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में देना है. आप बहुत लंबा बोलती हो तो छोटा ही बोलना. बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई. लेखन है इसलिए थोड़ा सा रोकना मुश्किल होता है. मुझे घर से भी इंस्ट्रक्शन होता है कि ज़रा थोड़ा 2 मिनट मतलब 2 मिनट. मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी. जैसे आज जो हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वेलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और आज मुझे दुख है कि हमारे हॉल में भी बहुत जेंडर इनइक्वेलिटी है. महिलाएं बहुत कम हैं. और मैं अगर एक परिभाषित करना चाहूँ अपने आप को, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ विमेन फ्रेटर्निटी की, तो मैं कहूँगी कि हम धुरी हैं समाज की. धन्यवाद. थैंक यू प्रीति भाभी. बहुत ही रियल में शॉर्ट में आपने आंसर दिया. थैंक यू वेरी मच. इसके लिए लास्ट में मेरे को याद करवाना, या तो मैं अभी बोल दूँ. आपको एक और मस्त बात याद है. मैं मेरी वाइफ से बोल रहा था क्या तू क्यों नहीं आ रही आज, तो टॉपिक है क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन टेबल ऑफ द टेबल आमने सामने. बोले घर में तो मेरा ही चलता है ना, आ जाना फिर देख लेते हैं. सो दिस इज हाउ द थिंग्स. हम लोग इनइक्वालिटी बोल रहे हैं लेकिन आइडियली तो वी आर बिलीविंग दैट वी आर इन द इनइक्वालिटी. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. मैडम आप क्या सोचती हो? डिम्पल मैडम आपसे पहले कि आपका कंट्रीब्यूशन जो आप कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही हो एम्पावरिंग द वुमेन्स, तो उसमें सही में एम्पावर वीमेन को ही करना जरूरी है कि मेन को भी करना जरूरी है? ये एस्पेक्ट से मैं चाहता हूँ कि बताइए. Thank you, Neeraj sir. Last year I initiated one project for empowering girls from rural area. मैंने पहले आपको बताया कि I am AWS community builder and also AWS user group leader. So we are so many doing so many activities in Ahmedabad and Gujarat, right? So I last year started one project named AWS Cloud Shepherd, empowering girls from rural areas. So I selected 2 universities from rural area. One university from Kadi, Indrasil University, and second university at Bardoli, RNG Patel University, and at rural area. And with the help of the university, we selected group of the girls, and our user group volunteers and contributors, we trained them and certified them with the AWS technology. And once they are certified and prepared, then our AWS partner companies, we provide them internship and job opportunities at their rural place, at their work hometown. We provide all the facilities related to work environment, computers, internet and workspace, because they do not require to migrate to big city for good job opportunity, good employment, good job facility. We provide them good job at their own place, so they do not require to migrate to big cities. And our main goal is to rural area can thrive and they do not require to migrate to big cities. And also our main goal is to women can also empower through in rural areas through AWS technology with our AWS partners companies. And once these girls are prepared, certified, they repeat the cycle. They also selected the group of the girls from the universities and they also trained them, certified them, and also repeat the cycle. So this all the cycles run continuously in sustainable mode, and our initiative run at sustainable mode with the help of the AWS user groups, leaders, contributors, colleges, and also AWS partner companies. Thank you. क्या समझ में आया हमें?
इसमें से? आपकी तरफ से आंसर चाहिए, नहीं तो वन वे हो जाएगा ना। तो पहला बेनिफिट क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हम रूरल एरिया में कुछ काम कर पा रहे हैं। रिमोटली दे कैन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर प्रोवाइडिंग, बट दे आर एबल टू वर्क ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प अस टू क्रिएट जेंडर इक्वालिटी। जो रूरल एरिया में बच्चे हैं या गर्ल्स है या वुमेन्स है, दे कैन नाउ डू देयर वर्क फ्रॉम देयर होम with help of this digital transmission has been happened due to the technology। तो ये एक एग्जांपल था AWS कैसे कर रहा है। वैसे सारी बड़ी कंपनियां अपने CSR एक्टिविटीज़ या तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में आजकल पार्ट ले रही है। तो आपको अगर कुछ भी आइडिया आता है, इनोवेटिव आइडिया है आपके पास, दैट कुड हेल्प, जो भी सीनियर लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, दे कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम। भले ऑफिशियली रिटायर्ड है लेकिन माइंड से दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस, तो ये भी लोग वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो आपके पास कोई भी इनिशिएटिव हो तो दैट कुड बी वर्क आउट विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो जेंडर इक्वालिटी खाली मेल एंड फीमेल में नहीं होती है, एज वाइज भी होती है जेंडर इनइक्वालिटी। तो हम लोग उस पर भी आएंगे, लेकिन बिफोर गोइंग दैट कनिष्क जी के पास आते हैं। कनिष्क, मैन्युफैक्चरिंग में जो अब आप पहुँचे हो अभी, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वालिटी आपके पास कितना है, कैसे है और कैसे मॉडिफाई कर रहे हो? यस, सो अभी हम लोग जो हियरिंग एड मैंने आपको बताया कि हम जितना भी काम कर रहे हैं पूरा का पूरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट पूरा इंडिया में होता है। तो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और मैं हमारा ही टीम, हमारा जो वर्कफोर्स है उसके एग्जांपल से आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। सो पहला पार्ट हो गया जो डेवलपमेंट टीम है, जो मतलब पूरा इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट इस पे काम करते हैं। सो यहाँ पे अहमदाबाद में ही हमारा अभी अराउंड 80-85 लोगों का डेवलपमेंट टीम है। आउट ऑफ देम अभी अगर मैं आपको नंबर बताऊँ तो रफली अराउंड 38 to 39 फीमेल एम्प्लॉयज़ दे आर इन डेवलपमेंट टीम। सो डेवलपमेंट टीम में जैसे हमारे प्रोडक्ट्स है सारे, तो आप टेक्निकली आप बात करो तो मोस्टली इट्स पार्ट, जो सबसे मेजर पार्ट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इवन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टीम है, सो शी इज़ ऑल्सो लेड बाय अ वुमन एंड उनके अंडर में वी हैव लाइक टीम ऑफ मोर 15 पीपल हु आर डूइंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट पार्ट। सो डेवलपमेंट में तो बिकॉज अभी इतना स्किल डेवलप हुआ है, सो वी हैव लाइक मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, जो हमारा मोस्ट क्रिटिकल टीम है, दैट टीम हैज़ बीन बीइंग लेड बाय अ वुमन सिंस लास्ट 5 to 6 years। सो दैट इज़ समथिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी तो आ रही है, बट नाउ दे आर ऑल्सो लीडिंग few of the very important critical aspects of the company। तो एक तो ये हो गया, एंड दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सो मैन्युफैक्चरिंग में अभी हमारा सबका थॉट प्रोसेस होता है कि मोस्टली ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है विच इज़ मेल ड्रिवन, की जितना वर्कफोर्स होता है ज़्यादातर मेल वर्कफोर्स होता है, क्योंकि वो काम भी वैसा होता है कि हार्ड वर्किंग चीज़ें होती है एंड फिजिक भी बहुत जगह पे इन्वॉल्व होता है। सो वो टाइम पे बट जैसे अभी ये नई नई जो इंडस्ट्रीज़ आ रही है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग जो होता था, तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप बात करो स्टील, रियल एस्टेट की चीज़ें, वो सारी चीज़ों में इट वाज स्टिल लाइक अभी भी ऐसा है कि मोर फोकस्ड ऑन मेल वर्कफोर्स। बट जैसे अभी ये जो सॉफ्ट इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, तो जैसे मैं हमारी इंडस्ट्री की बात करूँ कि हमारा राइट नाउ वी हैव अ यूनिट इन नियर वडोदरा, एंड वहाँ पे जितना भी काम होता है तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं, सो जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग आप जिसको बोल सकते हो, जैसे पीसीबी का इंस्पेक्शन हो गया, सोल्डरिंग हो गया। सो वहाँ पे टोटली मतलब वी हैव अ जॉइंट वेंचर विद सम अदर कंपनी, एंड वहाँ पे टोटली 350 एम्प्लॉयज़ है जो पूरा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पूरा उसका इंस्पेक्शन से लेके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन टेक्निकल पार्ट में पूरा प्रोडक्ट का असेंबली, पीसीबीज का सोल्डरिंग एंड एवरीथिंग। सो अभी रिसेंटली हम लोग भी इसको रिव्यू कर रहे थे। सो जो उसके मोस्ट टेक्निकल पार्ट्स है कि पीसीबी सोल्डरिंग है, या तो जो चीज़ों का रिव्यू करना है, जो टेक्निकल रिव्यू है, एओआई बोलते हैं इसको, इंस्पेक्शन बोलते हैं। सो वो सारी टीम में जो हमारा टीम है सोल्डरिंग एंड असेंबली वाले पार्ट में, सो उसमें 52%, सो मोर देन मेल देर आर फीमेल एम्प्लॉयज़। सो जनरली क्या है कि वो बड़ौदा और उसके आसपास के जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे आईटीआईज और उसकी ट्रेनिंग के बेस पे दे आर हायरिंग मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द लोकल एरिया, एंड वहाँ पे 52% फीमेल्स आर लाइक मेनली वर्किंग ऑन दिस सोल्डरिंग एंड प्रोडक्ट असेंबली साइड। सो वो भी एक बहुत अच्छा मतलब वी हैव अ पार्टनर हु इज़ वर्किंग विद अस,
बट ये चीज़ देख के हमको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन आने से, स्किल डेवलपमेंट होने से, नाउ लाइक वुमेन आर ऑल्सो मोर इन्वॉल्व इन टू दिस काइंड ऑफ सेगमेंट्स, जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा मेल वर्कफोर्स डोमिनेशन था, बट नाउ देर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर पुटिंग देयर एफर्ट्स एंड मेकिंग द ग्रेट थिंग्स. सो थैंक यू कनिष, थैंक यू वेरी मच. आप लोग बता सकते हो स्टेम का फुल फॉर्म? मैं चाहता हूँ सीनियर लोग पहले नहीं बोले, जो पहले यंग या मेरी एज तक है वो लोग बताए स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है आपको? कोई और पूरे ऑडियंस में नाउ सीनियर लोग भी है, स्टेम का फुल फॉर्म? ऐसा नहीं, पहले मैडम, या प्लीज लास्ट में. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो ये सारी चीज़ों में आज जो एडमिशन होता है उसमें करीबन 43% से 47% गुजरात का जो स्टेक है वो गर्ल्स का है. तो दिस इज़ हाउ वी आर सेइंग दैट कि आज टेक्नोलॉजी में तो गर्ल्स इक्वली जा रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट इक्वली बट इट इज़ टेंड्स टू इक्वली. तो ये सारे एडमिशन्स, फिर भी चैतन्य भाई है वो सही डेटा दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ. बट कमिंग टू द प्रीति जी, जैसे कोई एसोसिएशन का चेयरपर्सन बनना एंड वो भी बीइंग ए फीमेल, तो आप जो एसोसिएशन आज लीड कर रही है आईटी को, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे एसोसिएशन में कैसे आप आई, और ये आने से आप क्या देना चाहोगी कि वुमेन कम्युनिटी कैसे आगे आ सकती है? क्या एक्सपीरियंस आपका है? देखिए, बीइंग चेयरपर्सन ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स अहमदाबाद सेंटर, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और सभी मेल जो मेंबर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट मिलता है. और हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि आईटी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं, जो आई थिंक सो कि पूरे सोसाइटीज़ जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनमें वो इकलौती महिला प्रेसिडेंट हैं. तो वो भी एक गर्व की बात है. बट मुझे ये लगता है कि जैसे टेक्निकल फोरम्स हैं, सेमिनार्स हैं, या हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें अभी भी जो विमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है. आज भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ गिनती की 4-5 लेडीज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन लेडीज़ को नहीं है, काफ़ी टेक्निकली क्वालिफाइड हैं. अभी हम इसरो में देखें, पीआरएल में देखें, आईपीआर में देखें, कॉलेजेस में देखें, बहुत सारे टेक्निकल प्रोफेसर्स एंड महिलाएं हैं, बट वो कभी उनको या तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो खुद पता नहीं क्या हेजिटेशन है कि वो सामने आना नहीं चाहती. तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक अपने में आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि हम भी वही कर सकते हैं. वो ज़माना गया कि जब महिलाएं नहीं कर सकती थी, पुरुष ये काम कर सकते थे. आज हम सब इक्वली सारे काम कर रहे हैं, तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस भी लाने की बहुत ज़रूरत है. और मुझे लगता है कि जैसे हमारी जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, हम सब मिलकर भी इस तरीके से विमेन को एनकरेज करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि वो जो भी इंटेलेक्चुअल हो, नॉट ओनली विमेन, किसी भी जेंडर का हो, वो अपनी बातों को खुलकर रख सके, उसे अपने लीडरशिप का मौका मिले और वो अपने तरीके से अपनी नॉलेज का, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी का, उसका देश को उसको कुछ योगदान दे सके. थैंक यू वेरी मच. चलिए, इस पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को तो कहीं नहीं दिखा, आपको कहीं पे दिखा हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा. लेकिन याद पहले एक क्वेश्चन और करता हूँ कि आपको ऐसी 3 कौन सी फीमेल याद आएगी जो आपको लगता है कि सक्सेसफुल है विदाउट थॉट? आप कौन सी 3 फीमेल का नाम ले सकते हैं कि जो आपको लगता है सक्सेसफुल एंड दे आर मोटिवेट टू अस बीइंग ए फीमेल लीडर्स? कोई भी हैंड रेज करिए प्लीज. कोई भी नहीं? 3 नाम नहीं आता क्या? हाँ, तो बहुत सारे में से 3 ही बताना है सर.
मैंने वही बोला था, प्रॉम्प्ट में 3 नाम आने चाहिए. हमें ये चीज़ हमारे कॉन्शियस को बाइट करना चाहिए कि वी आर नॉट नोइंग 3 पॉजिटिव लीडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की 3 लीडर्स बताने की बात करूं. हाँ चलिए आप बोल दीजिए. नहीं नहीं करिए, दैट इज गुड. ऑलवेज दीजिए नाम. करिए, बात ही करनी है, आंसर ही चाहिए. यहाँ से तो कोई नहीं बता रहा है, आप बता रहे हो तो बढ़िया है. 3 नाम प्रॉम्प्ट चाहिए टेक्नोलॉजी में. वो आर द रियली दे हैव वर्क एंड मोटिवेटेड अस. ऐसी 3 फीमेल के नाम चाहिए. हाँ सुधा मूर्ति जी, चलिए प्लीज. देन सॉरी इंदिरा नूरी. या एंड थर्ड अरुधंती भट्टाचार्य. गुड. सो ये चीज़ें बार बार हमें क्यों ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि हमें वो नाम्स नहीं पता है. ऑलरेडी अगर आप गूगल में सर्च लगाओ, मैंने भी सर्च लगाया था. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ऑल्सो अवेयर विथ ऑल द नेम्स, बट मैंने सर्च डाला तो गूगल ने 190 नाम दे दिए पहले ही सर्च में. एंड देन वी आर नॉट एबल टू स्पेल आउट ओनली 3 नेम्स. तो ये चीज़ हमारी लुकआउट है, हमारा नज़रिया कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, साथ में नज़रिया भी चेंज करना है, तभी जाके ये इक्वालिटी आएगी. दैट इज़ व्हाई आई वांट टू से. सो नाउ कमिंग टू द डिम्पल जी. डिम्पल जी, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेंडर इक्वालिटी जो हो रही है, तो वो मार्केट में कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, या किस तरीके से मार्केट में उसको लाना चाहिए, या कैसे उसको सही ढंग से पहुंचाना चाहिए? Thanks, Neeraj ji. Digital transformation is all about the using technology, right, to make our life easier, faster, and to more connected. Whether it's at work or school or business or even farm also, right? It involves tools like computers, mobile apps, cloud services, online platforms, and even AI. So that helps and improve our daily routine works, right? For example, in banking, people can use the internet banking and mobile application. They do not instead of visiting branches, right? Similarly, hospitals, right? Hospital also use the online booking and the digital medical records. So healthcare becomes more easier and efficient, right? So now when we talk about the gender equality in digital transformation, we are not just talking about the fairness, we are talking about the progress for everyone. If women and girls don't have the equal access to digital tools or opportunity or training, believe me, we leave out the half the world's potential. But when they do have the access, they create and they lead and innovate, right? So many women are earning through Instagram, YouTube, e-commerce, sharing their knowledge and sell their products, homemade products, then homemade, handmade goods, and become financial independence, right? And this is all of because of they are aware of digital knowledge, digital literacy they have, right? That's why they becomes the digital business due to YouTube and e-commerce, right? So you can't have real innovation without inclusion. If digital transformation is meant to uplift society, it must include everyone, and that starts with ensuring women and girls are left behind. थैंक यू. क्या समझ में आया? मैडम ने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी. अब इसमें से हमें निकालना है कि क्या हो रहा है. बिजनेस हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है. तो सबसे बड़ी चीज़ पहले लेते हैं हम. इनोवेशन में आज की तारीख में अगर आपको किसी यूनिकॉर्न का नाम सुना हुआ है किसी ने? यूनिकॉर्न क्या होता है पता है? यूनिकॉर्न क्या होता है? तो कोई भी कंपनी 3 साल के अंदर अगर अपना टर्नओवर 1 बिलियन तक पहुंचाता है, तो दैट इज कॉल्ड
यूनिकॉर्न। तो ये स्टार्टअप्स की दुनिया का एक बड़ा वर्ड है कि जब अगर आप स्टार्टअप बनाते हो और यूनिकॉर्न बनते हो, दैट वुड बी अचीवेबल। तो ऐसी फीमेल लीडर ऑफ स्टार्टअप, एक उसका नाम बता सकते हो जिसने यूनिकॉर्न बनाया हो? चलिए, स्टार्टअप नहीं है, फिर भी हमारे गुजरात से, कच्छ से एक महिला है जिसकी आज टर्नओवर करीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा है। बता सकते हो आप? अभी एक मूवी आया गुजराती, एंटरप्रेन्योर, पता है आपको? सुप्रिया पाठक वाला एंटरप्रेन्योर, दैट इज मोटिवेटेड बाय दिस लेडी। पता है आपको? हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, प्रीमियम देखते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं, लेकिन अभी कभी सोचा है कि किससे इंस्पायर होकर ये मूवी बनी हुई है? पबी बैन, राइट, दैट इज द राइट वर्ड। गूगल सर्च किया क्या वो पता था? दैट्स गुड। बट पबी बैन का लास्ट यहीं पे एमए में इंटरव्यू था लास्ट 25 तारीख को विथ सुप्रिया पाठक। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कोई एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है, उनकी जर्नी भी सुनने लायक है, कैसे इनोवेशन पेन से खड़ा हुआ है, एंड दैट द जर्नी। तो ये मूवी अगर आप देखने चाहो तो उसके साथ पबी बैन की स्टोरी पढ़ के जाना, अगर जाना है तो कनिष्क, यू आर द मैन ऑफ स्टार्टअप, सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू दिस स्टोरी। तो क्या बता सकते हो कि स्टार्टअप में आज वुमन का क्या महत्व है, वुमन को क्या बेनिफिट है? वेरी नरेटिव, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है मेरे को पता है, लेकिन वी हैव टू इंस्पायर द ऑडियंस के वुमन लीड। हम लोग भी हमारे घर से हमारी पत्नी या हमारी माँ या हमारी बेटी को लेके अगर हम कंपनी बना पाए तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, वो भी बता देना। यस, सो एटलीस्ट पिछले 8 साल से हम लोग काफ़ी एक्टिव है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एंड बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है। सो एक्चुअल में जो पॉलिसी आया, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, देन फिर स्टार्टअप गुजरात पॉलिसी, सो एवरीथिंग स्टार्टेड इन 2016 एंड ऑलमोस्ट 1 साल बाद 2017 से हम लोग इकोसिस्टम में, एंड काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी बदलाव हम लोग देख रहे हैं। सो स्पेसिफिकली अगर हम फोकस करें कि जब आप वुमन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हो, सो पिछले 5 से 6 साल में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हुए जो वुमन लेड स्टार्टअप है, एंड या तो वन ऑफ द को फाउंडर इज़ वुमन, एंड उसमें गवर्नमेंट की तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है जो स्टूडेंट को तो करती है, बट स्टूडेंट के साथ साथ अगर वुमन लेड स्टार्टअप है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जैसे मैं आपको एक स्टूडेंट लेवल से अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। सो सबसे पहला एक स्टूडेंट लेवल पे पॉलिसी होता है SSIP करके, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी। सो ये स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी में देयर इज़ अ पार्ट वेयर अगर कोई भी को फाउंडर या तो फाउंडर फीमेल को फाउंडर है, सो उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, सो उनको एक एडिशनल सस्टेनेंस अलाउंस मिलता है। ऑन टॉप ऑफ इट उनको जब व्हेन दे पिच एंड व्हेन दे वांट टू पुट देयर सॉल्यूशन या उन्होंने जो भी चीज़ें बनाया उसको मार्केट में डालना है, सो उनको एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का एक्सेस मिलता है। सो एक वुमन लेड स्टार्टअप के लिए स्टूडेंट लेवल से ही अगर वो, क्योंकि आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, बट SSIP का मेनली फोकस ऐसा होता है कि कॉलेज लेवल पे आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करें एंड देन उनको मोटिवेट करें कि वो आइडियाज़ से एक्चुअल स्टार्टअप या एक्चुअल कंपनी में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें। सो वो टाइम पे पहले ऐसा होता था कि कॉलेज में आइडिया आया, सिलेक्शन हो गया, बट फिर वहाँ से जब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बात है कि जब एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो वो टाइम पे वुमेन लेड स्टार्टअप्स का नंबर काफ़ी लो था। तो और भी बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे एक अलग अलग इंक्यूबेटर्स के अलग अलग स्कीम होते हैं। सो मैंने भी 2-3 चीज़ों को विटनेस भी किया है एंड उनके पैनल में भी थे हम लोग। सो देयर इज़ अ स्कीम कॉल्ड हर स्टार्ट। So her start is like her as in woman entrepreneur is starting something. तो ये हर स्टार्ट स्कीम के अंडर मैं लास्ट ईयर एक जो पैनल हुआ था, सो व्हाट दे डिड वाज कि अक्रॉस द गुजरात, ये गुजरात से लिमिटेड था। सो गुजरात में उन्होंने क्या किया कि 2 फोकस एरियाज लिए। वन इज़ की वुमन लेड स्टार्टअप्स, सो वुमन लेड स्टार्टअप्स जो एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, एंड दूसरा उन्होंने निकाला कि एनी इश्यूज विच इज़ रिलेटेड टू वुमन डेवलपमेंट या तो वुमन एम्पावरमेंट, उनके रिलेटेड जितने इश्यूज हो, एंड अगेन दैट आर वुमन लेड। सो ये पूरा उन्होंने जब कलेक्ट किया तो दे गॉट अराउंड 1400 एप्लीकेशंस फ्रॉम सच डिफरेंट वुमन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द स्टेट, एंड फिर यहाँ पे 5 days का उनका बूट कैंप हुआ था, और वो 1500 में से ऑलमोस्ट 350-400 स्टार्टअप्स थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से ग्रांट्स मिले,
एंड वो ग्रांट्स के आगे नाउ दे आर बिल्डिंग देयर ओन बिजनेस एंड वो आगे अच्छे से काम कर रहे हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है. सो जैसे नॉर्मल स्टार्टअप्स को दे आर गिविंग ग्रांट्स अप टू 30 लाख रुपीज़, बट स्पेसिफिकली अगर आपका स्टार्टअप वुमन लेड स्टार्टअप है, सो यू गेट 10 लाख एडिशनल ग्रांट. सो 40 लाख तक का ग्रांट मिलता है इफ द वुमन ये वापस नहीं देना होता. हाँ, एंड इट्स अ कंप्लीट ग्रांट. सो ये गवर्नमेंट आपको जस्ट फॉर द एम्पावरमेंट एंड आप कुछ डेवलप करो जिससे अ लॉट अदर पीपल कैन गेट बेनिफिट. तो गवर्नमेंट भी एडिशनल ग्रांट्स वगैरह देते हैं एंड स्पेसिफिकली नहीं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है. तो इवन 8 years to 80 years. या सो इवन मैं जो आपको प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ हर स्टार्ट, सो वहाँ पे वी सॉ दैट देर वॉज अ लेडी हु वॉज ऑलमोस्ट 62 years old एंड उन्होंने कुछ स्टार्टअप चालू किया था एंड शी वॉज पिचिंग अगेंस्ट ऑल द इन्वेस्टर एंड एवरीथिंग. सो कोई एज लिमिट नहीं है. कॉलेज के बच्चों से लेके अप टू एनी एज पीपल आर कमिंग एंड डूइंग एंड गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट. तो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स, काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है कि आइडियाज़ तो सबको आते हैं. मैन ऑल्सो हैव आइडियाज़, वुमेन ऑल्सो हैव आइडियाज़. तो वो आइडियाज़ का आगे मतलब आइडिया से लेके, आइडिएशन से लेके जब प्रोडक्ट और बिजनेस तक कन्वर्ट करना है, उसमें एक एक्स्ट्रा पुश उनको मिलता है जिससे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं. तो ये इस बात से क्या हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे? यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लगता है आपको हो रहा है या मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लगता है ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा इसमें मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि ये सारी स्कीम्स क्यों बनाई जाती है. जो हमारे दिमाग में जो कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, उसको कहीं कहीं कर्टल करने के लिए, उसके लिए हम लोग खुद आगे आए एंड वुमन लेड स्टार्टअप्स को प्रमोट करें. तो इसके लिए तो यहाँ पे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर है अहमदाबाद में एंड दे इंक्यूबेशन सेंटर्स हर 15 दिन पे ऐसे हर स्टार्टअप के एक प्रोग्राम रन करते हैं. एंड आप मानोगे नहीं, लेकिन हर बार जब भी मैं कंटिन्यूस टच में हूँ, हर 15 दिन पे 15 नई वुमेन्स ज्वाइन कर रही है. इन्होंने बोला ना 1400 स्टार्टअप्स फ्रॉम गुजरात, वो भी मोस्टली फ्रॉम अहमदाबाद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अहमदाबाद से 1400 वुमेन्स आज आगे आके कुछ स्टार्टअप के लिए पार्टिसिपेट करती है, कंपटीशन में पार्ट लेती है एंड उसमें से गवर्नमेंट को लगता है कि 372 को हमें ग्रांट देनी पड़ी. तो कैन यू थॉट ऑफ दैट कि वो 32-7 आइडियाज कुड बी वर्केबल, दैट्स वाई दे हैव गिवन द ग्रांट्स. ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की देन ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण ही स्टार्टअप्स है एंड स्टार्टअप्स के कारण ही आज कुछ हो रहा है. तो ये एक हम लोग जेंडर इक्वालिटी में ये भी पॉइंट कंसिडर करते हैं कि इसके लिए जो भी हम लोग आज पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम लोग कंसिडरेशन ले रहे हैं. तो अब आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन जिनका आपको नाम लेते ही प्राउड हो जाए, ऐसी कौन सी वुमन है, या कौन से फील्ड से सबसे ज़्यादा वुमन वर्क करती है आज के दिन भी? ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स आया आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी कि जो वुमन लेड सी रही है. तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? 2 इंडस्ट्रीज के नाम चाहिए. फैशन इंडस्ट्री ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री के वी कैन से 50-50, फूड इंडस्ट्री. तो ये ऑलवेज लीडिंग रहा है कि हेल्थ केयर, फैशन, फूड इंडस्ट्रीज, ये ऑलवेज आप कभी भी एडवर्टाइज देखोगे तो वुमन लीडिंग होगी. बिजनेस का अगर देखोगे तो भी वुमन होगी, ज्वेलरी या जो चीज़ें वुमन लीडेड होती है उसी के थ्रू चलती है, उसी के थ्रू मार्केटिंग होता है, दैट इज़ हाउ. लेकिन हमने उसको कभी अलग अंदाज से ही देखा हुआ है, एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं देखा हुआ है. तो यही बात को लेके मैं आ रहा हूँ कि प्रीति जी, हाँ प्लीज़ मैडम. या I am talking about 1986, when there were very few women entrepreneurs, and like Gujarat government was giving grants, special seed capital as well as benefit in interest also. So that time the people who were granting that, they had, I think, a psychological, what I should say, they had some limitation. So they had asked me so many questions about the project, and I replied everything. And finally I asked him, why are you asking me so many things? And he said, because normally to get the benefit of all the extra benefits, men, they put women as forefront.
I said, but that is not the case with me. If you ask my husband, he doesn't know anything about the project. So this is a mental block which I had experienced in 1986. So I'm sure that mental block is not there anymore. And people are more open to women entrepreneurs. Thank you. थैंक यू मैडम। स्मृति मैडम है जो आईटी से चेयर कर चुकी है एंड बहुत आगे प्रेसिडेंट बन चुकी है पूरी इंडिया की। ऐसे ही हमारी एक कुलश्रेष्ठा मैडम है, मनोज भाई कौन से ईयर में थी वो? 1984 में सी वॉज चेयरपर्सन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, जो 12 लाख इंजीनियरों का चलता है, तो उसमें सी वुड बी। सो ऐसी भी महिला है जो इंजीनियरिंग में कहीं पे वर्क कर चुकी है, दे हैव रूल्ड ऑल इंडिया, तो ये भी है। तो मैं प्रीति जी से क्वेश्चन पूछने जा रहा था कि प्रीति जी जैसे आप अभी एसोसिएशन में आई हुई है, तो एक तो एकेडेमिया इंडस्ट्री एसोसिएशन का काम ही यही होता है कि एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री को साथ में लाना और स्टार्टअप को मोटिवेट करना, तो उसके लिए आप क्या एक्शन कर रही है? बहुत अच्छी चीज़ कही आपने नीरज भाई। हम लोग आईटी अहमदाबाद सेंटर में हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से एम्पावर करके मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। और जब से मैंने इसका पद संभाला है तब से हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए पहले भी हमारे सेंटर में कायम हो रहे थे, बट बीइंग अ विमेन चेयरपर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में हमें जो हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ सेंटर में चलानी चाहिए। तो हमने डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू किया है और हम उसे बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि देखिए जो कॉलेज जा रही हैं लड़कियां, वो उनको भी बहुत कुछ पता रहता है, स्कूल वाले बच्चों को भी मालूम रहता है, तो पर हमारे जो आज डे टू डे लाइफ में जो छोटे छोटे से काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे ऑटो टैक्सी बुक करनी है, या फिर मुझे कुछ घर में कोई सामान ख़त्म हो गया है अचानक और मैं नहीं जा सकती हूँ तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, या मुझे टिकट बुकिंग करनी है, या फिर नेट बैंकिंग भी करनी है। और आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और उसमें स्पेशली जो विमेन के साथ जो साइबर बुलिंग के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने हमारे सेंटर में एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड स्पेशली विमेन, और हम उनको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, ताकि वो अपने कामों के लिए अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड्स पर डिपेंडेंट ना रहें। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि अगर इस प्रोग्राम के दौरान मैंने ये देखा है कि बहुत जैसे अगर मैं मेरी भी बात करूं तो ज़रूरी नहीं कि मुझे हर चीज़ आती हो, बट हम सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कोई भी महिला अगर जॉब कर रही है, वर्क कर रही है, कहीं पर भी किसी फील्ड में है, तो वो हर चीज़ की मास्टर नहीं हो सकती। अब जैसे महिलाएं, जैसे आपने पहले कहा था, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा, ये सब बहुत तेज यूज़ करती हैं, रील्स बना के डालेंगी, कहीं से कोई रेसिपी कॉपी करेंगी, कुछ है, बट उसमें उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक हम वहाँ से शुरू करते हैं, मोबाइल फ़ोन के फीचर से लेके उन्हें क्या, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारे सेंटर पे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है, यहाँ हमने कुछ कह दिया, अच्छा आपने सुन लिया, हो गया। नहीं, आपको उसी समय अपने मोबाइल को ओपन करना है, उसकी सेटिंग्स को ओपन करना है, आपको कैसे डाउनलोड करेंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि हमने इस क्षेत्र में और आगे कदम बढ़ाते हुए जो पूरे गुजरात की कुछ ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं, वो जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, सामाजिक कार्य करती हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर अब ये प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल ही हमारा एक प्रोग्राम है जो ऑल ओवर गुजरात की एक संस्था है, उनके साथ हम कर रहे हैं। तो वो अपनी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए वो हमसे जुड़े हैं। तो ये हम जो प्रोग्राम है वो हाइब्रिड मोड में करते हैं।
हाइब्रिड मोड में करने का कारण ये है कि भाई सबके अपने घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उनके साथ लिमिटेशंस हैं, तो वो आ नहीं सकती। तो उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऑनलाइन भी उनको सिखाएं, समझाएं, और ये हमारा प्रयास रहता है कि उनके साथ कोई ना कोई एक साथ में रहे, ताकि अगर मान लीजिए उनको प्रोग्राम करने में कुछ एप्लीकेशन ऑपरेट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अहमदाबाद सेंटर जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, महिलाओं को एम्पावर करने का काम कर रहा है। और मैं खुशनसीब हूँ कि हम आईईआई के भी विमेन एम्पावरमेंट सेल है, तो हम आईईटी और आईई मिलके ये सारे हम प्रोग्राम्स करते हैं। ठीक है भाभी जी, लेकिन मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया तो मैं अलग तरीके से चाहता हूँ, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत ठंडे ठंडे चल रहे हैं, तो थोड़ा गर्मी चाहिए। तो एक एसोसिएशन वाले मैडम बैठे हुए, एक इंडस्ट्री वाले बैठे हुए, एक स्टार्टअप वाले बैठे हुए, ठीक है। तो बताइए आप तीनों कैसे कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं? हाँ। प्रैक्टिकल वे में। पहले मैडम डिम्पल मैडम से पूछते हैं कि अगर आप चाहोगी कि मैडम के साथ कैसे वर्क करोगी, कनिष्क जी के साथ कैसे वर्क करोगी, यहीं से कैसे कोलैबोरेशन? हाँ, कोलैबोरेशन कैसे करोगे? आप चाहो कि इन दोनों के साथ काम करना है, मैडम का फायदा उठाना है, कनिष्क का फायदा उठाना है, स्टार्टअप है, तो आप कैसे लोगे? अच्छा, मैं प्रीति मैम से ऐसे कोलैबोरेट करूँगी कि ये बहुत एक्टिव है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी वो रन कर रही है, और मैं भी एक वुमन कम्युनिटी रन कर रही हूँ। तो हम भी बहुत सारे प्रोग्राम्स वुमन के करते हैं, कि बहुत सारी वुमन इंटेक इवेंट्स भी करते हैं, वुमेंस डे सेलिब्रेशन करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे फॉर टेक्नोलॉजी। वी इंस्पायर मोर वीमेन टू जॉइन द टेक इंडस्ट्री, आवर मेन एम इज़। तो मैं इनसे कोलैबोरेट करने के लिए बोलूँगी कि हम साथ में कोई इवेंट करें, स्पेशली फॉर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, तो मैं आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, तो मैं आपसे कोलैबोरेट करना चाहूँगी कि आप हम मिल के ऐसी वुमन के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें। कैसे कनिष्क जी को यूज़ करोगी? तनिष्क जी जो स्टार्टअप्स में जो बहुत माहिर है, तो मैं उनसे भी कोलैबोरेट करना चाहूँगी कि मुझे भी कोई एक ऐसा एक बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप करना है। तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, मगर मैं अभी आपको बता नहीं सकती हूँ, मगर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है। नहीं चुरा लेंगे, आप बता दोगी तो। तो मैं उनसे एडवाइस लेना भी चाहूँगी कि मेरे पास ये आइडियाज़ है, इसके ऊपर मैं कैसे स्टार्टअप में काम कर सकती हूँ, मुझे क्या इसमें बेनिफिट मिल सकता है, मुझे इसमें क्या गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिल सकती है। तो मैं इससे बहुत सारी एडवाइस भी ले सकती हूँ, और मैं मेरा अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द कनिष्क जी। हाँ, कनिष्क, योर व्यूज, आप दोनों मैडम से क्या क्या बेनिफिट लोगे? सो मैं दोनों से थोड़ा स्पेसिफिकली करता हूँ। जैसे आपने बताया कि एकेडमिक्स एंड जितना भी इंस्टीट्यूशन है, सो इंस्टीट्यूशन वगैरह से मतलब इवन मैं एक ऐसा भी चीज़ प्रपोज कर सकता हूँ कि इन दोनों के कोलैबोरेशन से हमको कुछ अच्छा आउटकम मिल सके। सो ये एक चीज़ हमने देखी थी। सो देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स जो स्पेसिफिकली वुमेन फोकस्ड है, जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स हैं, इट्स अ फीमेल इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज दे हैव डन टाई अप्स विद इंडस्ट्रीज। सो उनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा था, सो इट्स कॉल्ड शैडो प्रोग्राम। सो शैडो द वुमन एंटरप्रेन्योर करके एक प्रोग्राम है। सो शैडो प्रोग्राम जनरली क्या करता है कि जितने भी एकेडमिक्स या तो एसोसिएशन से वुमेन है हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सो ये लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के साथ ऐसा कुछ टाई अप करते हैं, जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई स्पेसिफिक बिजनेसेस या कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट से है, कोई टेक से है, कोई डेवलपमेंट से है, सो उनको एकेडमिक्स या जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोगों को, वो फीमेल्स को फाउंडर्स या फीमेल एस्पेरेंट्स को पकड़ के दे ट्रेन देम अंडर अ सिंगल लीडर, और उनका एक शेडो मॉड्यूल होता है, तो उनका शेडो बन के रहते हैं। सो इन ऑल द मीटिंग्स दे गो, इंटरनल टीम के साथ कैसे काम करते हैं, एंड वहाँ से जो मैन पावर क्रिएट होता है, सो वी हैव बीन डूइंग दिस विद वन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो वहाँ से जितने भी ऐसे शेडो मॉड्यूल से ट्रेन होके आती है, तो 6 months दे आर अ शेडो ऑफ अ लीडर, एंड जो वो लोग प्रिपेयर होते हैं, दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड इन वॉट एवर दे डू, बिकॉज उनके अंडर ट्रेन हुए हैं। सो वॉट वी डू इज़ वी गिव द चांस टू दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर ट्रेंड, एंड उनको हम लोग लेके वी आर बिल्डिंग आवर टीम। सो ये कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के कोलैबोरेशन के आउटपुट से हमें कुछ फ़ायदा हो सके। दैट इज़ हाउ आई कैन आस्क देम द थिंग्स। आगे चलो, उससे पहले शेडो
कैसे वर्क करता है, कोई बता पाएगा जो कनिष्क ने समझाया? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी पावरफुल टूल है आज के टाइम में। एम आई राइट? तो हमने अभी पिछले एक साल में समझाने दो, फिर आपको फिर से समझाना है। डेफिनेटली शेडो कैसे वर्क करता है समझ में आया? किसी ने देखा हुआ है, समझा हुआ है? कुछ यहाँ पे लर्न करके जाएंगे, कुछ हम लोग एक्टिव बनेंगे तभी पता चलेगा। आई सेड एज इज नॉट ए बार, जेंडर इज नॉट ए बार, सो नाउ वी हैव टू लर्न, वी हैव टू एक्ट एज वी गेट द टाइम, राइट? तो उसके लिए पता है शेडो के बारे में कुछ बताओ प्लीज। जो भी बड़े बिजनेस लीडर्स होते हैं या जो भी लीडर्स है, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कनिष्क भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग को कनिष्क के पीछे बता दिया कि तेजस भाई को रख दिया। तेजस भाई वुड लुक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हिम एंड डिप्लॉय ऑल्सो with the permission of Kanisk, and then he trained by 6 months or 12 months, whatever way he trained, then that would be come out. वो बन के आएगा, वो दूसरा कनिष्क बन के आएगा indirectly. So that would be added value to the Tejas Bhai in terms of his credibility as well as Kanisk credibility, and that's how the things are moving on. तो ये शेडो ट्रेनिंग जो आजकल चल रही है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स है, जैसे बड़े बड़े लीडर्स है, उनके पीछे 10 से 12 शेडो लीडर्स लगे हुए होते हैं। दे लर्न फ्रॉम देम, दे गो टू द इंडस्ट्री, दे वर्क फॉर देम, एंड देन दे कम आउट एंड दे बिकम रियली गुड CEO। आपको पता चलेगा कि 10 महीने पहले इस बंदे का नाम कहीं पे आप देखोगे ना लिंक्डइन प्रोफाइल में था ही ना, और 10 महीने के बाद ही इज जंप लाइक एनीथिंग। ऐसे कोई लीडर्स का नाम बताओगे शेडो लीडर्स का? आजकल अहमदाबाद में एक बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन ढूंढ के रखना, मेरे को व्हाट्सअप करना, जो करेगा उसके लिए मैं एक बुक रखूंगा स्पेशली। थैंक यू। या कनिष्क, सो थैंक यू वेरी मच। मैं आगे चलता हूँ। प्रीति जी, आप इन दोनों का कैसे बेनिफिट लेंगी शॉर्ट में? हाँ देखिए, मुझे तो ऑफ़र मिल ही गया है, और हमारे पास क्या है कि बहुत एक्सपर्ट लोगों की टीम है हमारे इंस्टीट्यूट। हम बहुत लकी हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज़ है उनकी, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके और रूरल एरिया में हम लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को टीचिंग के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमारे बहुत कॉलेजेस के साथ हमारे ISF स्टूडेंट्स भी हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी आपके स्टार्टअप की हम सुविधा ले सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सॉरी मैं पापी जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बिजनेस आइडिया पे कब से आ रहा है, बाहर तो रुका नहीं जा रहा है। आप जो बता रहे हो वो सारी चीज़ें थियोरेटिकली बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए बताऊँ? एक मेरा सजेशन है, फिर आप बताइएगा। कनिष्क के पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पेटेंटेड है, प्राइस भी बहुत हाई है, तो हमें तो क्या करना है कि CFO मैडम बैठी हुई है, प्राइस को कैसे कट डाउन करेगी, CSR कैसे ढूंढेगी। जैसे कनिष्क की वी हेयर की प्रोडक्ट सारे रेड क्रॉस सोसाइटी में डोनेट हो रहती है CSR फंड से, तो हमें क्या करना है एसोसिएशन के थ्रू जिनको ज़रूरत है वहाँ तक, क्योंकि हियरिंग एड्स आज 7,000 से लेके 20,000 तक में रूटीन में मिलते हैं। इनके करीबन 60-80,000 कहीं पे जाते हैं, 30,000 to 80,000 की रेंज है, पूरा रेंज है। लेकिन अगर हम चाहें तो कैसे CSR फंड से, क्योंकि ये हियरिंग एड्स उनसे बहुत बेनिफिशियल है, खास करके जिनके मसल्स वीक है उनके लिए तो परफेक्टली राइट चीज़ है, क्योंकि वो बाद में भी हियरिंग एड्स पहन के भी वर्कआउट नहीं कर सकते। तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है सारी प्रोडक्ट्स के, ये जान के अगर हम लोग इनसे कोलैबोरेट करें, इनसे फाइनेंस का बेनिफिट ले और हमारे मेंबर्स में पॉपुलेट करें, तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है। मेरे को तो बैठे बैठे यही आइडिया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। भाई एक गुजराती मतलब बिजनेस अगर ना समझे और सोचे तो फिर कैसे काम चल सकता है। बट अगर मतलब जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, जैसे हमारी बातचीत यहाँ पर जो पैनल में हमारी चल ही रही है, तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करें, या हम जो सामाजिक कार्यों में जो अग्रसर हैं उनकी बात करें, तो अमूल और SAP ने एक मिलकर एक कोई वो लोग प्रोग्राम चला रहे कोड उन्नति।
तो उनका जो एम है कि 15 लाख महिलाओं को गुजरात में उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना है, ताकि वो अपना जो स्किल सीख कर वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकें। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एकेडमिया और इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन किया हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है कि भाई इन लोगों मतलब हमें ऐसे लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग वो इंस्टीट्यूट देते हैं। उसमें हम लोग, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट है, IEI है, IET है, हम लोग बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा काम है एक ब्रिज के रूप में काम करना, जो जिसको ज़रूरत है, मतलब हम जिसे हिंदी में कहते हैं कि कुएं और प्यासे के बीच की दूरी को हम कम करने का काम करेंगे, कि जिसको जिसकी ज़रूरत है उसको हम उसका सपोर्ट दे सकें। और इसी तरीके से यहाँ अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो कुबेर नगर में ITI ने एक आई फैक्ट्री, आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, बट आई फैक्ट्री नाम से एक लैब शुरू की है, और उस लैब में वो लोग यूथ को और जो विमेन हैं, स्पेशली विमेन को, वो जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, IoT है, AI है, डेटा एनालिटिक्स है, उसकी ट्रेनिंग दे रही हैं। और ये काम हम लोग IET और IEI में भी हम लोग वी कैन प्रोवाइड, कि इंडस्ट्रीज़ के साथ वी कैन कोलेबरेट एंड वी कैन डू। तो हम कनिष्क जी के साथ, वो वही है कि कनिष्क जी के साथ हम कोलेबरेट करें और डिम्पल जी हमें फाइनेंस करें, और सबका साथ सबका विकास। फाइनेंस करने की बोलोगे तो डिम्पल जी भाग जाएगी, फाइनेंस में मैनेजमेंट करके दे, वही बात करनी है। देखिए सॉरी मजाक कर रहा हूँ जी, हाँ, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और एक महिला से ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बचत करना भी एक तरीके से इनकम होती है, ये हमारा मानना रहता है। तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब बचत और जो खर्च है उसको बैलेंस करना। चलिए, कमिंग टू द लास्ट राउंड ऑफ द थिंग्स, फिर आपके पास मैं ज़्यादा चलूँगा क्योंकि आपके साथ भी बात करनी है। पैनल डिस्कशन का यही मतलब होता है कि हम कुछ इंटरेक्ट करें। तो फाइनल आपके लिए फाइनल क्वेश्चंस राउंड है। तो डिम्पल जी, आप कैसे ये करंट लैंडस्केप है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें क्या क्या कंक्लूड करना चाहेगी? आपके लिए बोलने के लिए लास्ट मौका होगा, फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। Sure. Look at where we currently stand on digital gender equality in digital transformation, digital place, right? One of the biggest issue is the digital gender divide. Globally, women are 17% less likely to use the mobile, internet, computer in compared to men, right? In developing countries, the gap is even wider. And it's not just about the technology, it's about the access, opportunity, and confidence. Many of the women cannot afford the mobile, computer, and smartphones, and even data plan or internet, due to it's very expensive, right, in rural area and remote area. And even they have a smartphone, but they may not have the they have not the knowledge to how to use these digital device, digital tools, or even they may not have the chance to learn how to use this digital device or digital phone, yeah, computer. So it's a main problems of the women. And also cultural barriers. In some of the place, it's still seen as inappropriate for women to use these computers, technology, or internet. This is not just as a technology, it's a social issue, right? Even when women do have access, they are still underrepresented in the industry itself. The numbers are, today less than 30% of the tech workforce are women. And in fast growing fields like AI, cybersecurity, data science, the numbers are very less. And the leadership role, decision making roles, still women are underrepresented. If digital transformation is going to work for everyone, it needs to include everyone. Ultimately, when women are included,
the entire digital ecosystem becomes more inclusive, innovative, and impactful. I would like to share one example, digital transformation with UPI. One of the best example of digital transformation in India is the widest spread use of UPI, United Payments Interface. UPI has changed the way people make payment, whether it's buying groceries, paying utility bills with vegetables, groceries, marketing, sending money to relatives or friends. I have some data I would like to share with you. In March 2025 alone, UPI recorded 18.30 billion transactions, a daily average of 590 million transactions, a total transaction value of 24%, 77 lakh crore, with nearly 79,900 crore proceed every day. This shows how digital payments have become a part of everyday life, replacing cash and making transactions faster, safer, and more convenient for millions of people across the country. UPI is a powerful example of how digital tools can transform financial systems, promote financial inclusion, and support a digital economy. Thanks. थैंक यू। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा फायदा तो बैंक वाले पीछे बैठे ना, उनको हुआ होगा कि हमारी यूपीआई की बात कहीं तो आई, फाइनेंस की बात आई। सीएफओ है तो फाइनेंस तो आना ही था, एंड आपको तो खुश होना होगा कि कहीं पर बात आ गई है। लेकिन क्या सही अर्थ में सारी लेडीज़ सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, यूपीआई कर रही है? ये जो यूपीआई पेमेंट आपने बताया वो बहुत बढ़िया था, लेकिन हाउ मच फीमेल contribution in this amount? That is the right question. Then we can say gender equality is there. So this is the question. But कनिष्क के पास ये क्वेश्चन लेकर नहीं जाना चाहिए हमें तो जाना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो शार्क टैंक में मार्केटिंग कैसे मिला, शार्क टैंक का एक्सपीरियंस क्या था, एंड अगर किसी को जाना है अपने इनोवेटिव आइडिया से शार्क टैंक में तो क्या करना चाहिए? वेरी ब्रीफ, नॉट ए फुल सॉरी। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ जितना आपको ब्रीफली समझा सकूँ। सो एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे लर्निंग्स थे, बहुत अच्छा नए नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ। यू नो हाउ एक्चुअली जो हम लोग टीवी में देखते हैं जो 15-20 मिनट का एपिसोड, उसके पीछे कितना मेहनत लगता है कि 2-2.5 घंटे तक की शूटिंग होती है कंटिन्यूसली, और उसमें से वो पूरा बनता है। एंड उसके भी पहले यू नो इट्स लाइक एफर्ट ऑफ 2 to 4 days टू मेकिंग लाइक पीपल रेडी फॉर इट, क्योंकि आप जा रहे हो, आप प्राइम टाइम पे आपको यू नो ऑन एयर आने का मौका मिल रहा है। एट अ सिंगल टाइम उनका जनरली व्यूअरशिप इज अराउंड 10 to 12 करोड़, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10% पॉपुलेशन। तो आपको वो मौका मिल रहा है, यू नो दे ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर दैट कि आपको ये मौका मिल रहा है, तो आपको जो 15 मिनट मिलने वाली है ऑन एयर, आप उसका बेस्ट कैसे बना सकते हो। सो लर्निंग तो काफ़ी अच्छे थे। एंड अनदर गुड थिंग वॉज कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को मिले कि दुनिया भर में, देश भर में क्या क्या चीज़ें हो रही है नई नई। सो एक यू नो नेटवर्किंग कनेक्शन वो भी बहुत अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो पोस्ट शार्क टैंक की अगर बात करें कि हम लोग आए, ऑन एयर आए, जितना भी हुआ, तो 2 अलग अलग एडवांटेजेस मिले। तो बिजनेस के टर्म्स में तो चलो काफ़ी एडवांटेज मिला कि यू नो बिकॉज ऑफ दिस मीडियम कि इतने सारे लोगों तक हम पहुंच सके, क्योंकि टीवी का पेनिट्रेशन अभी इंडिया में काफ़ी अच्छा है। तो आप कितना भी डिजिटल मार्केटिंग करोगे, ये करोगे, फिर भी आप यू नो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में चलो इतना पेनिट्रेट कर पाओगे, बट Tier 3 सिटीज़, विलेजेस, ये सब में बिकॉज ऑफ यू नो प्रेजेंस ऑफ टीवी काफ़ी अच्छा। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि हियरिंग यू नो Tier 1 की प्रॉब्लम है या सिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमको रफली अगर मैं आपको नंबर बताऊँ तो वो विदिन अ वीक, जब हम आए उससे विदिन अ वीक हमको कम से कम 15 से 16 हज़ार यू नो कॉल्स आए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से। तो वो तो हुआ ही, लोगों को सॉल्यूशन के बारे में पता चला, बिजनेस को भी ग्रोथ हुआ। बट सेकेंडरी भी, मतलब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई कुछ हम लोग इंडिया से बना रहे, कुछ सॉल्यूशन लेके आ रहे, तो मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में आइडिया है कि उनके लिए ये सॉल्यूशंस, ये चीज़ें अवेलेबल है, एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट।
तो ओवरऑल लर्निंग वाइज भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बिजनेस वाइज भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड पूरा जर्नी है, पूरा प्रोसेस है, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 months प्रोसेस था, यू नो, फ्रॉम फिलिंग अप द एंट्री फॉर्म टू गोइंग ऑन एयर. तो किसी को भी अगर उसमें भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली वी कैन, यू नो, हेल्प इन ऑल द वेज पॉसिबल. चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, सही दिल पे हाथ रख के बताना, कनिष्क को मैंने बताया उससे पहले कितने को पता था कि वी हेयर शार्क टैंक में था एंड कनिष्क इज द CEO ऑफ द वी हेयर? ये दो चीज में किसको पता था? आउट ऑफ यहाँ पे हम लोग 70 करीबन बैठे हुए हैं, 7 hands शायद रेज है. समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे थे ना? क्योंकि हमारी व्यूइंग कैपेसिटी अलग हो गई है, हम जो देखते हैं उसको दिमाग में नहीं लेते, रील्स की तरह ही जाता है सारी चीज. वी आर मूविंग ऑन. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है हमारे लाइफ में, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सही ढंग से नहीं चल रहा है. दैट इज आई मीन टू से, द बंदा जो हम लोग कहाँ पे ढूंढते, रितेश अग्रवाल को ढूंढेंगे या किसी और को ढूंढेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई बंदा शार्क टैंक में जाकर आया हुआ है, यहीं पे अहमदाबाद में बैठता है, आप बुलाओ तो आ जाता है प्रेम से फाइनली, तो यू हैव टू लुक एट दैट, यू हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम जब भी टाइम मिले. परमिट मेंटर बॉक्स, कभी आई माइट बी कनिष्क एंड राज कभी मेरे पास मेंटरी के लिए आए थे. मेरे को पता है जब शार्क टैंक से पहले गए थे तब मेरे को नहीं पता था कि ये इतने बड़े बनने वाले हैं, नहीं तो कुछ पकड़ लिया होता साथ में. लेकिन यही चीज़ होती है कि आज हम उनसे मेंटरिंग ले कि हम लोग कुछ बड़े बन पाए. सो एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफॉर्मिंग. ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ये भी मतलब है कि आप जो भी व्यू करो उसको ढंग से व्यू करो, उससे कुछ गेन करो. नहीं तो व्यूअर टाइम, वो बोलते हैं ना मोबाइल में क्या, कौन सा टाइम बोला जाता है? हाँ, अटेंशन स्पान आपका कम हो रहा है एंड व्यूइंग टाइम बढ़ रहा है. ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये वही बता रहे थे कि 10 से 12 करोड़ लोग ने उनको देखा, लेकिन फोन आए 15 से 16 हजार. ठीक है, सो रेशियो इज टू लो. तो हमारी एपेटाइट क्या है देखने की, वो हमें समझनी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, ये भी चीज़ चाहिए. तो कनिष्क, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जर्नी एंड रियली आई अप्रिशिएट. अगर किसी को भी चाहिए तो ही इज़ वेरी हम्बल, ही एंड हिज पार्टनर राज एंड विजय भाई, देयर मेंटर एंड गाइड. वो भी तीनों लोग इतने अच्छे. रेड क्रॉस सोसाइटी में ये लोग पूरे अपने डिवाइस डोनेट करते हैं जिनको रियल में ज़रूरत है CSR के एक्टिविटी तहत. तो ये सारी चीज़ के लिए थैंक यू कनिष्क फॉर ईयर एंड हम्बल टू अस. प्रीति जी आपकी बारी है. 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, एक लाइन. ठीक है, नहीं लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रही है, IT को कहीं चीज़ पे ले जा रही है, सारी एक्टिविटीज़ को रीबाउंड कर रही है. आफ्टर कोरोना सारे एसोसिएशंस डाउन हो चुके थे, उसमें से रिवाइव करना एंड बीइंग ए फीमेल लीडर इट वुड बी डिफरेंट, बट शी इज़ डूइंग वेरी वेल. सो मैं चाहता हूँ कि इसको आप जेंडर इक्वालिटी के फॉर्म में बताइएगी कि कैसे आप वर्क कर रही है एंड क्या आज का निष्कर्ष देना चाहोगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी. सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई दूंगी और कनिष्क जी को भी बधाई दूंगी. हमारे हिंदी में एक कहावत है कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया, और गुरु के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड की बात होती है कि जब उनके जो शिष्य है वो ऊंचाइयों तक पहुँचे. तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ. और मैं ये आपके प्रश्न पर आती हूँ. देखिए क्या होता है कि ये बहुत बरसों की कड़ी मेहनत होती है, परिवार का, समाज का, सबका साथ होता है जब हम इस लेवल तक पहुंचते हैं. मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड काफ़ी घंटों तक IIT में बिज़ी रहते थे, सैटरडे संडे सब, देन आई थॉट कि आई शुड जॉइन द IIT. वो जो मेरे लिए एक मोटिवेशन था. हम कहते हैं हम घर से ही सीखते हैं. उसके साथ जब एक महिला घर से बाहर काम करने निकलती हैं, डिम्पल जी मेरे साथ सहमत होंगी, मैडम मेरे साथ सहमत होंगी, और जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं, तो जब उनको एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ जाओ तुम निकलो और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम घर की चिंता नहीं करो, तुम इस चीज़ की चिंता नहीं करो, तुम करो आगे, तो हम हैं. तो जब हम धीरे धीरे, और हमको बीइंग अ लेडी, जब हम बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ मैनेज करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट है, आप मनी मैनेजमेंट करती हैं, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी एक महिलाओं का एक USP है. हम सभी चीज़ें मैनेज करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ईमानदारी, अपने व्यक्तित्व में ईमानदारी, अपने कार्यों में ईमानदारी. दूसरा एक आत्मविश्वास को बनाए रखना,
जिससे कि हम ये कर सकते हैं। अपनी विचारों को, अपने सोच को हम आगे रखें, हम अपनी बातों को रखने की हिम्मत रखें कि हाँ ये किया जा सकता है। तो जब लगन, मेहनत, आपके काम, आपकी इंटेलिजेंस और आपको सपोर्ट जब साथ में मिलता है और उसका जब ब्लेंडिंग होता है और उसके साथ जब आप अपने काम करते हैं और एक अच्छी सोच के साथ करते हैं कि हमें सोसाइटी को कुछ देना है। आज हम जब इस पोजीशन पर हैं तो हम सब ऑनररी काम करते हैं। तो यहाँ अगर आपने मनी को हटा दिया और केवल सोसाइटल बेनिफिट को देखा तो आप एक बहुत अच्छी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट को लीड कर सकते हैं, सोसाइटी को उस इंस्टीट्यूट का फ़ायदा दे सकते हैं, जिसके कारण वो इंस्टीट्यूट बना है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। धन्यवाद। नहीं, थैंक यू। नहीं, मैं तो ऑडियंस की तरफ देखता हूँ, आपकी तरफ देखता हूँ। मेरे को तो यही है कि अब ये लोग अभी भी उबले नहीं हैं, तो मैं वही चाहता था कि थोड़े उबले। कुछ क्वेश्चंस आए आपकी तरफ से। देखिए, बार बार मौका नहीं आता है हर एक चीज़ों का। जैसे डिम्पल जी एंड नीलेश भाई यहाँ पे जो AWS वाले दोनों हैं, दे आर रियली वर्किंग सो हार्ड। उनकी कम्युनिटी के अगर आप नेट पे सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि उनके थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में फॉलोअर्स है, ठीक है, उनकी कम्युनिटी में। तो दैट इज़ द थिंग्स दे आर डूइंग अमेजिंग। कनिष्क को तो आपने देख ही लिया, 10-12 करोड़ लोगों ने उनको देख लिया है। और भाभी जी भी बोल नहीं रही है, लेकिन सी इज स्प्रेडिंग सो वाइडली उनकी एक्टिविटीज़। तो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेज है कि वहाँ खुला खुला पूछ सकते हैं डरे बिना, और उनको आंसर देना भी पड़ेगा। तो आप क्या पूछना चाहेंगे विजय भाई, प्लीज़। को एजुकेट करते हैं, वो लड़कियां दूसरी लड़कियों को एजुकेट करते हैं। तो अब तक ये कहाँ से, कौन से साल से शुरू हुआ और अब तक कितनी महिलाएं या लड़कियां, स्टूडेंट्स एजुकेट किया हुआ और उन्होंने कितना किया? तो गेट एन आइडिया। वेरी गुड प्रमोटेड आइडिया आपने जो कर रही है वो रूरल एरिया में बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटी छोटे गांव में भी अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हो गई है। मैंने भी बहुत सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी देखी हुई है। जो पूरा आपने दोनों बताया, मैं वहाँ जाके मेरा प्रोग्राम बिकॉज मैं वाटर के ऊपर कंजर्वेशन कर रहा हूँ, तो आप ये डिजिटाइजेशन के ऊपर करिए। दोनों का काम एक ही है, वाटर के बिना भी नहीं चलेगा नाउ ऑनवर्ड्स, और डिजिटाइजेशन के बिना भी नहीं चलेगा। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर स्टार्ट किया था फॉर द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स। 6 मंथ्स जो लास्ट सेमिस्टर, आई थिंक, हाँ 6, 7 और 8 सेमिस्टर के स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट किया था। तो हमारा ये लास्ट ईयर का जो हमारी बैच है, फर्स्ट बैच ही हमारी चल रही है अभी। 3 कैंडिडेट फ्रॉम RNG पटेल कॉलेज एंड 3 कैंडिडेट फ्रॉम इंद्रसील यूनिवर्सिटी, टोटल 6 गर्ल्स है। और अब जो हमारा जो इनिशिएटिव जो चल रहा है लास्ट ईयर से, तो अभी हमारा एक उनका जो AWS ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जब हमारा फेस है वो अभी कंप्लीट हुआ है। अभी उनका हमारा इंटर्नशिप चल रहा है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गए, अभी वो इंटर्नशिप के मोड पे है सारी लड़कियाँ। अभी उनका कॉलेज का लास्ट ईयर है और उनका लास्ट ईयर में इंटर्नशिप होता है, तो उनका अभी इंटर्नशिप चल रहा है। वो भी उनका अभी उनके जो रूरल उनकी स्पेस है, जहाँ होम टाउन है, वहीं से वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं और हम इधर से हम लोग प्रोवाइड सारा उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। जो भी कंप्यूटर से, इंटरनेट है, अभी वो उनको कॉलेज ने ही खुद वर्क प्लेस दिया है इंटर्नशिप के लिए। तो अभी सारी लड़कियां अपनी कॉलेज में आके पूरी इंटर्नशिप वो अभी स्टार्ट उनकी हो गई, अभी वो कर रही है। टोटल 6 लड़कियां हैं, यस। इंटर्नशिप के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद उनको एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जो AWS सर्टिफिकेशन है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। उसके लिए भी हम उनको प्रिपेयर करेंगे, बाद में हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। थैंक यू। तो फर्स्ट बैच अभी हमारी रेडी, मतलब चल रही है, ऑन गोइंग है, यस। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सोनल बेन का पूरा इंस्टीट्यूट अभी चलता है जो, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज़ चल रहा है। बाकी सोनल बेन का है, पब्बी बेन का भी, मैंने जब से उनसे बात हुई लास्ट मंथ से, आई न्यू टू दैट कि वो अहमदाबाद में करीबन 800 महिलाओं को ट्रेन कर रही है।
So this is also activity going on. हमारे So बहुत you सारे look, you कॉलेजेस can look में at कनेक्ट से, मगर ये 2 कॉलेजेस ऐसी थी रूरल एरिया में है, तो हमें रूरल कैंडिडेट्स गर्ल्स ही मिलेगी। पबीबेन तो हमने में- विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी रूरल गर्ल्स को हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कौन किसको बेनिफिट देना चाहिए, कौन प्रॉपर गर्ल्स है कि जिसको हमें ये बेनिफिट देना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी उन्होंने हमें सिलेक्ट करके ये 3 लड़कियां हमें दी है। ओके, थैंक यू। हेलो, जेंडर इक्वलिटी के कंसर्निंग दोनों वीमेन और लेडीज़ हैं, तो उनसे कंसर्निंग एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे स्मृति जी ने बताया ऐसे एक बात करना चाहूँगा, शेयर करेंगे कि पहले इंजीनियरिंग में जो हम थे 80s में, एलडी इंजीनियरिंग इज़ द एट द हार्ड प्लेस, तो उस टाइम पे ऐसा था कि पूरे क्लास में, या क्लास में नहीं, अभी तो क्लास की बात है, पूरे कॉलेज में 1 2 4 ऐसे लड़कियां होती थी, और जिसको मतलब ग्रीनरी बोलते थे, तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे उसको कि भाई उसमें ग्रीनरी, जो इवनिंग प्रोग्राम था हमारा वीजी भाई के साथ, उसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसे कॉलेज में थोड़ी ग्रीनरी होती थी। लेकिन जब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब इंजीनियरिंग में भी, सिविल में भी, मान लो अभी डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और ये सब इंटीरियर आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें ऐसी आई, तो इसके लिए अभी पूरे क्लासेस में और पूरी अभी कॉलेज भी देखो आप, जब भी ये 12th का चल रहा है तो एडमिशन में आईटी, कंप्यूटर, एआई सभी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स आ गई है। तो इसके लिए पूरे कॉलेज में, मतलब इंजीनियरिंग में पहले ऐसा था कि कोई मतलब ऐसी ग्रीनरी नहीं दिखती, लेकिन अभी हरियाली हरियाली ऐसा कह सकते हैं। तो और ये एक दूसरा, जैसे कनिष्क जी ने और ये प्रीति जी ने बताया, पास आउट हो गए, नहीं फिर से कॉलेज जाना चाहेंगे ना अभी। वही बात करता हूँ कि कनिष्क जी ने और प्रीति जी ने बताया कि एक स्टार्टअप करो, तो एक ऐसा सजेशन भी है कि आप स्टार्टअप से करो, तो कनिष्क भाई को साथ में लेके, ये प्रीति डिम्पल बहन तो हेल्प करेगी, वो बराबर है फाइनेंस की तरह से, लेकिन तीनों ऐसा करके कि वीमेन के स्टार्टअप हो सकते हैं। मतलब हमारे जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में है, तो पूरे जैसे हमारे जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कोऑर्डिनेशन वाले बहुत हैं, इनको साथ में लेके आप ऐसे करो कि स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन के हो, या ऐसे नॉट इवन वीमेन, लेकिन स्टार्टअप हो, उसके लिए अपने ऐसा एक एंडेवर कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन तो यही था कि आप दोनों, मतलब पहले तो डिम्पल जी खास करके टेक्निकल जो आई हैं, तो इतने टाइम पे आप पढ़ी, जितना पढ़ी अभी काम भी कर रही हैं, तो उसमें मतलब पहले जो पढ़ाई में और वर्क के दरमियान भी आपको कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी क्या हुआ, और अभी आप जो काम कर रही हैं दोनों, आप भी जो प्रीति जी कर रही हैं, तो आपको भी क्या कुछ नेगेटिव हुआ कि नहीं? हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे में तो पूरा है कि हम अपना हिंदू और सनातन कल्चर ही ऐसा है कि माँ काली से लेकर, तो हम तो पूरा रिगार्ड ही होता है हमारे में, ऐसा इक्वलिटी, मतलब कोई इनइक्वलिटी है ही नहीं, उसको इतना ज़्यादा पूजा जाता है, तो ऐसा हमारे कल्चर में ही नहीं है, और इनइक्वलिटी है ही नहीं, तो हमारे कल्चर में इक्वलिटी की बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगा, अभी आपका एक्सपीरियंस दोनों शेयर करें। थैंक यू। देखिए, समय भले ही बदला हो, पर मानसिकता नहीं बदली है ज़्यादा समाज की, और ये बहुत मतलब चिंता का और दुख का भी विषय है कि आज भले ही लड़कियां बहुत ज़्यादा, आप जैसे कह रहे हैं ग्रीनरी, बहुत एक मजाक के रूप में लड़कियों को मौका मिल रहा है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बट वो जो सोच है जो समाज की, जो वो उतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि आज भी ये देखते हैं हम सोसाइटी में, जो एक अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी महिला को बहुत, सॉरी टू से, बट आगे बढ़ते हुए देखना किसी के लिए, दूसरों के लिए बहुत पचा पाना मुश्किल होता है, और उनको बहुत सारी तरीक़ों से इन सब डिफ़िकल्टीज़ को सामना करना पड़ता है, जिसको ओवरकम करके आई हैं वो। और पर ये खुशी की बात है कि ये जैसे हमारे यहाँ भी डिजिटल इंडिया जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, और सरकार और हम इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज़ सब सपोर्ट कर रही हैं महिलाओं को, लड़कियों को, तो मुझे लगता है कि माइंडसेट में चेंज आएगा, लड़कियों के भी और मेल्स के भी। थैंक यू सो मच। हेलो, लास्ट क्वेश्चंस 2 ही लेने हैं, तो एक आपका लेंगे, मैडम का। नीलेश भाई, तुम्हें तो गरज पूछी सको ना, सॉरी।
ના ના સાહેબ, હું ડિમ્પલબેનને તમે જે કીધું ને નેગેટિવિટીને પાર કરીને આવ્યા હોય ને એ જ લોકો આ લેવલે પહોંચ્યા હોય, એટલે એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. હા, એટલે મારો તો તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જો સ્ટાર્ટઅપનું બીડું કીધું છે ને, અમારે મનોજભાઈ મને એવું શીખવાડે અમારા કે જે કે ને એના ઘરમાં પહેરાવાનું. તમે એક સ્ટાર્ટઅપ લઈને આવો, આ 3 જણ કરી આપશે. હું એમની પાસેથી એ શીખી રહ્યો છું, બરાબર. એટલે તમે પ્રોજેક્ટ લઈને આવો, એ 3 સપોર્ટ કરશે, એની ગેરંટી મારી, બરાબર છે. હા, yeah, please. Yeah, good evening everyone. I'm Ankit Didwania, Secretary IIT Ahmedabad. I have 2 suggestions basically, not questions. Like we are talking about gender equality, like too much of awareness is already been done. Everyone is agreeing with this. So there is no more awareness needed according to me. But as we are an engineers association, what I assume is like instead of just discussing, let's come out with an RFC or a white paper which with these discussions and set some metrics which set some measurable development or impact. So not just discussing, we should today itself take a vow and come out with a metric, suggest some 10 metrics, 5 metrics, get it measurable done so that every day we say gender is already equal now. It's no more such thing which I personally believe. I'm in academia. There's no inequality which I seen, but there is no measurable metrics available. United Nations have everything, sustainable development goals. Every goal is having a measurable impact, but not gender equality. So we should come, instead of just coming here and discussing is not fruitful, no deliverables is there. That is what I personally believe. 100% Ankit bhai, તમે સાચા છો. Second thing, yeah, please. Yes, thank you sir. Second thing which I believe is like gender equality, we always talk about male, female. But Indian constitution has already allowed for the third gender. I haven't seen a single word about third gender in this entire discussion. So that should also be included, and it will be included only when there would be a matrix, because such things are easily forgotten. Nobody is talking about digital transformation of third gender or even education of third gender. So that's a gap which I thought should be discussed, and it should come out. I think today all the engineers should again sit, get some 5-10 metrics finalized, send it as a white paper to the international organization and get it registered. And then we, in the next meeting, we can do a conference on it and go to the next level, not just have a discussion anymore. Thank you. ભાઈ બહુ સાચું કીધું, પણ હું એનો એક સારો રિપ્લાય આપું. તમે ટીચર છો ને, એટલે તમે વારંવાર રિપીટ કરો ને. અમે બધા શું છે કે એક વન ટાઈમ સાંભળીને ભૂલી જઈએ, એટલે અમારે સેન્સિટાઇઝ થવા માટે આવા લેક્ચરે કરવા જ પડે સાથે સાથે. એટલે એટલા માટે અમે આ કરીએ છીએ. બીજું કે છે ને 100 વખત સાંભળીએ ને ત્યારે આપણો એટેન્શન રેટ, મેં હમણાં કીધું ને કે 10 કરોડમાંથી ખાલી 10,000 માણસો આવે, એવો એટેન્શન રેટ છે. એટલે જ્યારે જો માણસ એકવાર સેન્સિટાઇઝ થઈ જશે ને તો કોઈ મેટ્રિક્સ નહીં બનાવવા પડે, એમનેમ જ કામ થશે, એમનેમ જ NGO ચાલે છે, એમનેમ જ સેવા કરે છે, એમનેમ જ CSR ફંડ સાચી રીતે વાપરે છે, બરાબર છે. એટલે જે વસ્તુ છે એ સેન્સિટાઇઝ કરવાની છે. એક વખત માણસના હૃદય સુધી પહોંચી ગયા ને તો એ કામ ઓટોમેટિક થાય છે. એ પછી દેખાડવાની જરૂર નથી, એના મેટ્રિક્સ બનાવવાની જરૂર નથી, કામ કરવાની જરૂર નથી. એટલે આવા પ્રોગ્રામ થવા જ જોઈએ. હા, એની સાથે આવું કંઈક સેન્સિટાઇઝ થઈ અને કોઈ એક્ટિવિટી થાય એને મોટિવેટ કરવી જોઈએ. જેમ આજ કનિષ્ક આવ્યા ને મેં એમની રેડક્રોસની એક્ટિવિટી હાઇલાઇટ કરવાનો પર્પઝ જ એ હતો. કદાચ કનિષ્ક કેટલું કરે છે એ નથી ખબર, પણ વિજયભાઈને તો હું કાયમી કરતા જોઉં જ છું, બરાબર છે. તો મારો પર્પઝ એ જ છે કે આપણે એને સેન્સિટાઇઝ કરીએ, એને મોટિવેશન બનાવીએ અને એને રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ, એને બિરદાવીએ, બરાબર છે. ધીસ ઇઝ ઓલ. યા પ્લીઝ. ગુજરાતીમાં બોલું તો ચાલે? ગુજરાતી. હું ક્યાંનો ગુજરાતીમાં જ આન્સર આપું છું. થેન્ક યુ. હું એવું ઈચ્છું છું કે અમે લોકો, હું 41 યર્સની છું, તો હું એવું ઈચ્છું કે અમે લોકો તો BCom કર્યું, બરાબર. હવે ઘણું બધું નવું આવી ગયું છે, તો અમારા જેવી લેડીને કંઈક શીખવું છે, કોઈ કોર્સ કરવો છે, તો એના માટેનું કંઈક, અને એકદમ રિઝનેબલ રેટથી, કારણ કે અમે હાઉસવાઈફ છીએ, અમારા હસબન્ડ એટલું બધું અમારા માટે કરવા બધું તૈયાર હોય, પણ એની ફીઝ ને બધું તમે થોડું રિઝનેબલ રાખીને કંઈક ચાલુ કરો તો એવું અમે, અને મે બી ચાલુ છે તો અમારા સુધી એ વસ્તુ પહોંચાડવાની ટ્રાય કરો કે અમારા જેવી લેડી, મને ખબર નથી તો આવી ઘણી બધી લેડી હશે જેને ખબર નહીં હોય, તો એવી અમારા સુધી અવેરનેસ પહોંચાડો. એવું આ તમને પ્રોગ્રામ પહોંચાડ્યો ને પહેલી વખત, મને ખબર પડી હતી લાસ્ટ ટાઈમ આપણે મળ્યા ત્યારથી. જી. એટલે ને બહુ બધા પ્રોગ્રામ્સ ચાલે છે, પણ બહુ સાચું કહું કે આ બધા જ, હું મારા પ્રોગ્રામ્સ કહીશ, પ્રીતિબેન હમણાં એમના પ્રોગ્રામ લઈને બેસી જશે, ડિમ્પલબેન તો કંઈક અલગ જ દુનિયામાં લઈ જશે તમને, AWSની દુનિયામાં, ને કનિષ્ક એમ કહેશે કે આવતા રહો, અમારે ત્યાં તો જરૂરત છે, ગમે તે આવો, અમે એક્સેપ્ટ જ કરીએ છીએ, બરાબર છે. પણ સૌથી પહેલું કદાચ તમારો ઇન્ટરેસ્ટ તમે ફાઇન્ડ કરો ગૂગલ ભગવાન ઉપર. મેં કીધું ને ક્યાં તમે સાચી ડાયરેક્શનમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે ને એ સર્ચ આઉટ કરવું જરૂરી છે. ગૂગલ ઉપર કોઈ પણ કોર્સ એવો નથી કે તમને જે શીખવા નહીં મળે બેઝિક વસ્તુ. હા, ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યા પછી એને ડેપ્થમાં જવા માટે
રાઇટ પર્સન જોઈતો હોય, એનું મેન્ટરિંગ, એનું ગાઈડન્સ અથવા એનો રાઇટ કોર્સ કરવો, દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ ઇસ્યુ. પણ પહેલી પોતાની શોખની વસ્તુ શું છે કે જેમાં કંટાળા વિના 18 કલાકે કામ કરી શકો અને દિલથી કામ કરી શકો, કોઈ પણ શેડ્યુલ બગાડ્યા વિના, એ તમારે શોધવાનું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ક્વેશ્ચन आंसर्सનો ટાઈમ ખતમ કરીએ. आपको जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पेशली मैंने इसीलिए हाउसवाइफ्स की बात की थी कि जब वो लोग डिपेंडेंट रहती हैं तो इसीलिए आईटी अहमदाबाद सेंटर ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है और हम लोग कर रहे हैं. तो जब भी आप और आपके जैसी जो भी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, हमें खुशी होगी. थैंक यू. एम ऑलवेज टाइम पंक्चुअलिटी के माना जाता है. उन्नीस भाई ने हमें 5 मिनट लेट चालू करने दिया, उसके लिए भी उनका थैंक्स पहले मान लेता हूँ. और 5 मिनट लेट क्लोज होगा उसके लिए भी उनका पहले से एडवांस में थैंक्स मान लेता हूँ. एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट उन्मेष भाई यहाँ के एमए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. एंड मैं चैतन्य भाई को कहूँगा कि उनका फेलिटेशन करें, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एएमए ने ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी दी, वो उनकी तरफ से दी हुई है. तो आई वुड लाइक टू, भले ही मेरे मित्र है, सब कुछ है, लेकिन आई वुड लाइक अप्रिशिएट के. દિનેશભાઈ સોરી, તમારો પાગ હું જ લઈ લઉં છું. એટલે सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग द इवेंट, बट मैंने हर एक इवेंट में ऐसा थोड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कि पहले ओपनिंग नोट्स में कुछ ब्रीफ करें आपको, एंड लास्ट में आप क्या घर पे लेके जाओगे. तो उनके लिए उनमें सवाई से बढ़िया कोई नहीं हो सकता था इस टॉपिक के लिए. सो आई सिलेक्टेड हिम के उनको फोर्स किया था कि आप रुकना एंड 5 मिनट हमें गाइड करके जाना. तो उनमें से भाई, ओवर टू यू. माइक यहाँ पे या वहाँ पे, इट्स योर. टेक्निकली मैं पूरी इवेंट में यहाँ पे बैठा नहीं था, बट फिर भी मुझे जो समझ में आया लास्ट 10 मिनट से जो मैं सुन रहा हूँ, सो मेल फीमेल की अगर बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की जो अगर बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वो कहीं जो कमी है वो हम में ही है. आने वाले टाइम में इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर इवेंट ना हो और फिर भी वो इवेंट हो, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए. बिकॉज हम अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स हम उससे या तो सहमत नहीं हैं या उसको हम प्राधान्य नहीं देते हैं. अगर इतनी ही चीज़ हम याद रखें, और दोनों जेंडर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है. कंप्यूटर की दुनिया के लिए मैं बात करता हूँ तो थोड़ा मैं गुस्ताखी करूँगा, आप लोगों की दुनिया के वर्ड बोलूँगा कि इट इज़ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन. बोथ नीड्स ईच अदर. वन इज़ सीन, वन इज़ नॉट सीन, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस जेल टुगेदर and have our good life like the mouse we have. डिजिटल टेक्नोलॉजी वो माउस जैसी है, फिरती रहेगी, घूमती रहेगी, बट एट द सेम टाइम हम तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. पबी बेन का जो नाम लिया आपने यहाँ पे, लेट मी ऑल्सो अनाउंस इट जस्ट एज अ सेल्फिश थॉट. हम लोग पबी बेन की जो इनिशिएटिव है उसको एएमए सपोर्ट करने वाला है, और आने वाले महीने में यहाँ पे रूरल में जो भी महिलाएं आर्टिसंस के ऊपर काम करना चाहती है, उनको मदद करना चाहती है, AMA is going to support them with a 90-hour course where Pabbi Ben will also come, and few other team members like Nilesh Bhai will also come from her team, and we will be supporting them. And third point, अगर आप लोगों को जो उन्होंने बोला कि ऐसी इवेंट करनी है, स्टार्टअप सपोर्ट करना है, जिसको जिसने इनिशिएटिव लिया है वो सबको मदद करनी है, आप नीरज भाई को बता दीजिए. AMA का एक रूम मैं आपको दे दूंगा. जगह आपकी, काम आपका, लोग आपके, हम आपके साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू उन्मेष भाई. एज यूजुअल ये सपोर्ट जो मिलता है ना, मित्रों से बोलते हैं ना, फ्रेंड्स से जो सपोर्ट मिलता है ना, तभी ये चीज़ हो पाती है. आपने सुना आपके लिए ओपन हो चुका है. मैडम आप करना चाहती थी ना, रूम यहाँ पे मिल जाएगा, मेंटर्स मिल जाएंगे. यहाँ पे गुरुओं का मंदिर है, एएमए गुरुओं का मंदिर माना जाता है, मैनेजमेंट का मंदिर माना जाता है. तो उस जगह पे आपको जगह मिल जाएगी, मेंटर्स मिल जाएंगे. सभी के लिए ओपन है, मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ. So we are now concluding with the vote of thanks. So दिनेश भाई आप अनाउंस करिए vote of thanks के लिए.
So panel discussion is now okay? Continued? We had already concluded and question answer. You concluded finally? Yeah. Okay. Thank you very much, Dr. Neeraj ji and panelist. And audience also, very good interactive session. And because time is short, and thank you to AMA also and Shri Unmesh bhai, as well as each and everyone sitting in the hall, including Doordarshan and Akashvani representatives. Now I request to propose a vote of thanks, and vote of thanks के लिए हमारे BES ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी श्री NL चौहान, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी में हैं. सर आप आइए, प्लीज़ वोट ऑफ थैंक्स दीजिए. चौहान साहब प्लीज़. Good evening, everyone. It is my proud privilege to deliver the vote of thanks on behalf of IIT Chapter Ahmedabad for today's enriching session at the AMA campus on World Telecom and Information Society Day. This year's theme, Gender Equality in Digital Transformation, is timely and crucial. It was heartening to witness such insightful discussions that emphasize the importance of inclusive growth in the telecom and digital sectors. We are deeply grateful to our esteemed panelists, Srimati Dimple Waghela, Shri Kanishk Patel, Srimati Preeti Agrawal, and our today's hero, Mr. Dr. Neeraj Shah, for sharing their knowledge, perspectives, and inspiring experiences. Your thoughtful have surely sparkled meaningful reflections and actions among us all. A heartfelt thanks to Shri Umesh Dikshit bhai, Director of AMA, for delivering a keynote takeaway with clarity and conviction, wrapping the session with practical insight and vision. We also thankful to our participants, members, and guests who made time to join us today. Your presence and engagement made this event truly impactful. Lastly, I extend sincere thanks to our support team, Institute of Electronics and Telecom Engineers, Institute of Engineers Ahmedabad Chapter, Broadcast Engineering Society, AMA, Water Management Forum, India Concrete Institute, ACM, CSI, MSME and Startup, ASI, and Equator Bank. I am also thankful to our media persons from Akashvani and Doordarshan. Let's carry forward the message of equality, empowerment, and digital inclusivity, not just today, but every day. Thank you once again. Shukriya. થેન્ક યુ વેરી મચ. કોઈ પણ ખાસ કરીને મનોજભાઈ, મુકેશભાઈ, પિંકીબેન અને બીજા જે લોકો પડદાની પાછળ આ ઇવેન્ટ કરવામાં આખો સપોર્ટ કર્યો છે એ બધાનો જ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ નેશનલ એન્થમ.